So, Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum, haq maujud, namaskar, pranam, sat sri akal, aloha, and welcome to class number 21 of Sindhi language learning online course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh. And we welcome you to this we welcome you to this saga number 21. When we are talking to you, this is class number 21 by Sindhi Language Authority, and Sindhi Language Authority is the body of Government of Sindh. And as I told you that this, as you all know, and especially those sorry, there was an interruption from my side. So we are talking to you right now. Sorry, there was an interruption from my side. So this is 5:04 p.m. as per Pakistan Standard Time. This is 5:34 p.m. as per Indian Standard Time. This is 4:04 p.m. in United Arab Emirates, 3:04 p.m. in Kingdom of Saudi Arabia. Bhale par mein hin waqt jeko waqt thyo ahe subah kalak poite jo thyo ahe, and this is 12:04 p.m. In United Kingdom, including London and rest of the parts of the United Kingdom, and this is 7:04 a.m. in Washington DC and rest of the East Coast of United States of America, and Canada ja hetha ilaka ahin utte bhi. This is the 9:04 p.m. In Tokyo and rest of the parts of Japan. This is 11:04 p.m. in Australia, and this is 1:04 a.m. now 1:05 a.m. in New Zealand. So, Bismillahirrahmanirrahim. Let's go to the very first slide to have a glance over the details, the modalities of this class, today's class. And I hope that you can see my slide now. So, this is class number 21. This is Jum'o, Friday. Friday is Jum'o, Yawmul Jum'ah. And this is the last day of the working week when we are talking about this learning process. This is from Monday to Friday, and this is for the information of those who are joining us for the very first time, and especially for those who are open learners. Open learners are those who are trying to learn these lessons through the video recordings and the post-class conduct, methods. So this is for those that this is Friday. This is class number 21. This is Friday. This is the fifth day. This is the fifth lecture, and this is 26th of January 2024. Class number 21, Friday, January 26, 2024, and this is in the learning course online, Sindhi Sykya jo course online by Sindhi ॿوليء jo بااختيار ادارو muqtadira Sindhi zuban, Sindhi Language Authority, and this is me, your instructor Yasir Qazi, and this is my pleasant duty to welcome you all to this venue, to this saga, to this segment, to this classroom, to this shiksha part. Una kitra hi nala thi sagan tha. उनखे कक्षा भी चई सघिजे थो, उनखे क्लासरूम भी चई सघिजे थो, उनखे शिक्षा जी जाइ चई सघिजे थो, उनखे शिक्षा पाठ चई सघिजे थो, त हिते जिते असां गॾिजूं था सिखण जे लाइ. We begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. अल्लाह असांजे पाक ऐं बाबरकत नाले सां शुरू, जेको असांजी सोच खां वधीक असां ते महिरबान आहे. अल्लाह तबारक तआला की ज़ात बाबरकत से हमेशा रहम की दरखास्त करते हुए आगे बढ़ते हैं. शाह अब्दुल लतीफ भिटाई इस सरजमीन के सबसे बड़े शायर as per the वैसे तो खैर बहुत सारे आलिमों ने इस बात को इंडोर्स किया है, लेकिन the very first biography of Shah Abdul Latif Bhitai, written by Dayar Gidumal, he writes the name of his book, the title of his book is The Greatest Poet of Sindh. So no doubt he is the greatest poet of Sindh, Shah Abdul Latif Bhitai, and the very first verse of his kalam, of his poetry collection, the very first poem of the very first chapter is Awal Allah Alim Ala Alam Jo Dhani. Awal Allah Alim Ala Alam Jo Dhani. Qadir Pahinji Qudrat Si Qaim Ahe Qadim. Wali Wahid Wadahu Raziq Rabb Rahim. So Sarah Sacho Dhani Chai Hamd Hakim.
करे पाण करीम जोड़ों जोड़ जहान जी। वो खुद ही जानता है कि उसने क्यों हिकमत अपनाई है कि हर चीज को जोड़े की सूरत में पैदा किया है। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द लास्ट लाइन। सो Ajulov, before doing Ajulov, when I ask you that what did we do yesterday, I'm not going to ask you the modalities of the class. मैं आपसे तफसीलात नहीं पूछ रहा कि लफ्ज कौन सा किया या जुमला कौन सा किया, उसके लिए मैं अलग से सवाल लॉन्च करता हूं कि कल का लफ्ज कौन सा था। लेकिन व्हेन आई आस्क यू कि कल की क्लास में क्या क्या हुआ, कल की कक्षा में क्या क्या हुआ, तो आपने यू जस्ट हैव टू give an overview of the class that what did we do, मोटा मोटा काम हमने क्या किया था वो आपने बताना है। ये नहीं बताना कि लफ्ज वर्ड ऑफ द डे कौन सा था, आज का लफ्ज कौन सा था, या सेंटेंस ऑफ द डे कौन सा था। वो जब पर्टिकुलर सवाल आए तब आप करते हैं। तो आई होप कि यू विल बी learning how to reply, how to respond to various questions. So my first question is, what did we do in yesterday's class? I'm not asking what was the word of the day. I'm not asking what was the sentence of the day. The overall overview, what did we do in yesterday's class? Is there anybody to tell me, to guide me, to remind me, what did we do in yesterday's class? Class number 20, which was on Thursday, yesterday. Aisha Khan, tell me, please. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, sir. Aisha Khan Sahiba has raised her hand before you. So would you please take trouble to wait? Aisha Khan Sahiba. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam, ma'am. जी, कल हमने मद की जदवल की थी और इसके अलावा हमने जो आपने स्टोरी कही थी सुनाने के लिए वो सुनाई थी। Okay, so this was the overview of yesterday's class. This is the overview. जी, Okay. और अज्जुलव और अज्जुजुमडू। Yeah, वो तो खैर हमारे regular segments हैं। Thank you very much, Aisha Khan Sahiba. I could listen male voice. Sir, now you can speak. Now you can drop in. अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद वालेकुम हमजा सलाम। फ्रॉम कराची। जी हमजा साहब कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है सर। जी सर, क्या किया था कल, कुछ रिमाइंड करवाइए। सर इसके अलावा कल हमने सिंधी बोली, सिंधी जबान के मुनफरिद लफ्ज जो दो में और आए वो किए थे सर। मैं और आए किया था। शाबाश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमजा साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने तवज्जो दिलाई उस तरफ भी। मैं और आए के मायने कौन बताएगा? कल हमने पढ़े थे मैं और आए। एनीबडी एल्स फ्रॉम दीज बोथ the gentleman and the gentle lady? Any other gentleman or gentle lady who can guide me? What do we mean by saying me and I? Ji Zishan sir. अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। सर उसका मैं का मतलब मैं है और आई का मतलब और। मैं का मतलब मैं, मतलब इंग्लिश में बताइए। यानी कि इन। ठीक है जीशान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जीशान साहब ने हमें बताया। अच्छा, इसको हिजे कैसे करना कि पाण हिजे कीअं कंदासीं? में ऐं जेके असां ॿ मुनफरिद लफ़्ज़ सिखियासीं, इहो सुवाल कल नदीम सोहू साहब कयो हुयो and I responded to that. Can anybody guide me how to pronounce a हिजे, how to explain a हिजे? उसको हिजे किस तरह से किया जाएगा? Can anybody tell me? कोई आहे जेको मूंखे ॿुधाए त हिनखे हिजे कीअं कबो? हाउ टू एक्सप्लेन समबडी के इसका हिजे कैसे होगा? Who is this? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। करीम साहब। सर मीम दो जेर में, मीम के नीचे दो जेर है और आई दो जेर आए। इस तरह हो सकता है मीम दो मीम जे ठा बा जेर ज़ेर तो है, पर या ज़ेर थोड़ी मुनफरिद ज़ेर है। इन मुनफरिद ज़ेर के छा चइबो? सर ये दो खड़ी जेर है, खड़ी ज़ेर। मिठा नदीम साहब, when I'm talking to somebody, don't just drop in. I have already requested you, don't just interrupt. या जेका ओवरलैपिंग थी ना, when I थी सके तो बजना at a time indulge them, but when I'm talking to somebody, when I'm addressing Karim Saab, means I'm talking to Karim Saab, means I'll request you to please keep silence or mute yourself, because I'm talking to one person, one gentleman. Then the other gentleman will have to drop in tomorrow. मां हींअर रेफरेंस ॾिनो तव्हांजो नालो खणी त नदीम साहब कल्ह पुछो
नदीम साहब कल पुछो तो मूं नदीम साहब के ॿुधायो, डेफिनेटली नदीम साहब नोट कयो, उनखे त अचे थो, ठीकु आहे अचे थो, पर जेकॾहिं तव्हां करीम साहब खां पहिरीं अचो आहे त आई वुड हैव रिक्वेस्टेड यू टू इंट्रोड्यूस दैट वर्ड. When I'm talking to Karim Baksh Saab, don't behave like primary students, sir. You are grown up, you are a teacher, you are an educator, so behave like a teacher. I'm talking to one learner, a particular individual. उनखे respond करने भले हो गलत बुधाए. Poma, I'll request you, I'll respectfully mention your name, and I'll ask you to please come forward and to share your input. ये विच में बारन वांगुर न कयो. Please don't do like this, sir. That breaks the tempo of the class. Thank you so much. I would have requested you, but that really breaks the tempo. Jai flow sa, jai dhara sa asan hota, that breaks the tempo. So let's move to aj jo lafz, aaj ka lafz, aaj ke lafz ki taraf hum बढ़ते हैं. और word of the day आज का लफ्ज आज जो लफ्ज is what. ये इस लफ्ज को गौर से सुनिएगा, और इस लफ्ज को गौर से इसलिए सुनेंगे कि हो सकता है कि आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आगे भी काम आए. क्यों काम आएगा ये तो वक्त बताएगा. ठीक है, एक सिंपल सा लफ्ज है. हम मुख्तलिफ सिफाती अल्फाज का भी जिक्र कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ इसमों का भी जिक्र कर रहे हैं, इसमें हाय खास का भी जिक्र कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन्स का भी जिक्र कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स का भी जिक्र कर रहे हैं, और प्रॉपर नाउन्स में रोजमर्रा के की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ चीजें हैं, उनको भी मेंशन कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनको क्या कहा जाता है. मेरा ऐसा कोई मेहरबान, एनी जेंटलमैन और जेंटल लेडी जिनकी मादरी जुबान सिंधी नहीं है, कैन एनीबडी टेल मी कि सुबह नाश्ते में हम सब अंडा खाते हैं, ठीक है, और उमूमी तौर पर मुर्गी का अंडा खाते हैं, उस अंडे को सिंधी में क्या कहा जाता होगा? एनी गेसेस? Any guesses from Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम सर. सर नाम बताइए पहले. मोहम्मद हमजा फ्रॉम कराची. जी हमजा साहब. मोहम्मद हमजा फ्रॉम कराची. जी हमजा साहब. सर बेदो. बेदो कहते हैं, ठीक है, सही है, ठीक है. एनी अदर वर्ड इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा आसान कोई? एनीबडी? एनीबडी? जी आयशा खान साहब. आयशा खान साहब. जी सर, अन्नो. अन्नो नहीं है, ये आनो है. आनो, आनो क्या है? आनो. आनो. थैंक यू. आइलीन साहिबा, यू आर रेजिंग योर हैंड. जी सर, मैं यही बता रही थी कि आनो कहते हैं और आनो. बेदो कहते हैं. आनो कहते हैं और बेदो कहते हैं. शाबाश, थैंक यू. तो मूविंग टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ द डे, आनो. दिस इज आनो व्हिच इज अंडा, व्हिच इज एग, और इसमें हम शामिल कर लेते हैं ये बेदो भी शामिल कर लेते हैं, राइट. आनो या बेदो, ये जुआ से लिखा जाता है, ये जुआ वाव, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है. लेट मी इंसर्ट स्लैश बिटवीन दीज बोथ. सो इसको इस तरह से लिखा जाता है, आनो या बेदो, राइट. यू कैन सी how it is written, आनो या बेदो, ठीक है. अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, नून जबर वाव नो, अलिफ मद आ, नून वाव जबर नो, आनो. ऑब्लिक या बेदो, बे ये जबर के साथ मिले हुए, इसको प्रोनाउंस दो कहेंगे, लेकिन वही वा जिस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, इसका वैसे ये बेजो लिखा हुआ है, यानी हम इसको सिंधी में जी ज्वाद खे पाण रूबरू तजवीद वांगुरु ना आहियूं पढ़ंदा त हिनखे बेज़ो बि चई सघिजे थो, पर आमतौर ते व जो उचार न करूं, बेज़ो, त हिनखे बेदो करे पढ़बो आहे, ॼण त इहो दाल सां लिखियल आहे, पर इहो सही लफ़्ज़ ई आहे, बेज़ो. बेज़वी शक्ल, बेज़वी शक्ल यानी ओवल शेप, ठीक आहे. बेज़ो, बे ये ज़्वाद वाव, बे ये खोड़ माण्हू सम्झंदा त शायदि दाल सां लिखबो आहे, न, इहो ज़्वाद सां लिखबो आहे, ऐं सही सूरत ख़ती ज़्वाद सां है, ठीक है. बे ऐं ये पाण में मिलियल जबर सां, ये जबर के सुर के साथ बे और ये आपस में मिले हुए, ज़्वाद और वाव जो है आपस में जबर के सुर के साथ मिले हुए. इट मीन्स अंडा, इट मीन्स एग, और इसको लिखा जाता है आनो. आनो के साथ हम ऐड कर लेते हैं नीचे कि बेदो कैसे लिखा जाएगा. दिस इज ऑब्लिक बी ई
ZZO, बेदो। ठीक है, ज़्वाद है तो इसलिए दौल की तरह इसका जो है वो साउंड सुनाई देता है, लेकिन दिस इज बेसिकली ज़्वाद से लिखा जाता है। बेजवी शक्ल यानी जो ओवल शेप हो, जिस तरह से जमीन जो है बेजवी शक्ल की है, यानी अंडे की शेप की है। तो अंडे को सिंधी में अब तो कॉमनली बहुत सारे लोग कहते हैं एक अंडा, हिकड़ो अंडो खाइंदुस, ॿ अंडा खाइंदुस, तो सिंधी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अंडा इन सिंधी इज रॉन्ग। आनो इन सिंधी, अगर आप पर्टिकुलरली उसके जिक्र, जैसे बहुत सारे उर्दू के अल्फाज सिंधी में अब इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि जो जुबान आप जब बोले तो वही जुबान बोले। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया वाली बात नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त आप जो जुबान बोले ऑनेस्टली आप वही जुबान बोले। तो आनो इज एग, अंडा, बेदो इज ऑल्सो एग, अंडा, आनो और बेदो। आनो इज रिटन AANO ऑब्लिक BEZZO, आनो या बेदो। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर हम इसके प्लूरल पर जाएंगे तो ये हो जाएगा आना जमा में, यानी अंडे, आना, और इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं ये जो लफ्ज था, यानी बेदो वाला जो लफ्ज था वो हम उसके साथ ऐड कर लेते हैं आना के साथ, ताकि इसकी वजाहत भी, इसको भी आप नोट डाउन कर ले। ये है बेदा, ये हो जाएगा बेदा। ठीक है, लेट मी रिड्यूस इट सो दैट यू कैन सी इट। ये हो जाएगा बेदा, और इसमें भी इंग्लिश में भी हम उसको ऐड कर लेते हैं BEZZA, बेदा। तो ये हो जाएगा इसका प्लूरल, आना, अलिफ मदा, नून अलिफ जबर ना, बेदा, बे ये जबर बे, ज़्वाद अलिफ द्वा, बेदा, बेदा जमा की सूरत में अंडे जब हम लिखेंगे तो एक्स यानी प्लूरल, और आना या बेदा ये हो जाएगा। तो सिंगुलर हो जाएगा आनो या बेदो। जब आप देख रहे हैं कि फिगर में भी एक ही अंडा है, अंडा एग यानी आनो या बेदो, और उसके बाद आना या बेदा यानी जमा में अंडे या एग्स इन प्लूरल, आना या बेदा। आई होप कि आपने नोट कर लिया। कोई क्वेश्चन इस बारे में? एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर एंड यू वांट टू मेक इट क्लियर? ओके, so we are moving forward. जो जुमलो, आज का जुमला, सेंटेंस ऑफ द डे। अगेन एक इनफॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन चल रही है दो इंडिविजुअल्स के दरमियान। एक आप हैं, एक कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, उसके साथ आपकी कॉन्वर्सेशन जारी है। और उन्हीं जुमलों में से आम जुमले जो हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कल हमने सेंटेंस ऑफ द डे किया था। कौन सा किया था कल का सेंटेंस ऑफ द डे? कौन सा था? Yesterday's sentence of the day. Who will tell me? क्या था कल का sentence of the day? Quickly. अगर नहीं आता तो मूव फॉरवर्ड कर दें। वालेकुम सलाम। से नाम बताइए सर। मोहम्मद इमरान जकरिया। कल का सेंटेंस ऑफ द डे आपने बताया था, आज मानी में छा पचंदो। मीन्स का मतलब क्या है? आज खाने में क्या पकेगा? आज What to cook today? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मोहम्मद इमरान जकरिया साहब। कल वर्ड ऑफ द डे क्या था? कल का लफ्ज क्या था? Who will tell me? Anybody else? वर्ड ऑफ द डे कल कौन सा था? क्विक so that we move सर मोहम्मद forward. हमजा। जी हाँ, हमजा साहब, मोहम्मद हमजा साहब फरमाइए। सर इन द लट। इन द लट क्या है? सर रेनबो। रेम्बो नहीं, रेम्बो इज अ करेक्टर, रेनबो। थैंक यू। शादिया साहिबा, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? जैसे यही बता रही थी मैं भी। इंटरलेट क्या कहते हैं उर्दू में इसको? धना किया कौसो कजा। कौसे कजा कहते हैं। बहुत शुक्रिया। वकास साहब, चाचंदो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर किया ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। इंडिलिटरी पढ़ायो कल सर। इंडिलिटरी जो छा थी वर्ड भैया? जो इंडिलिटरी सर वो कोसे कजा के चवंदा आहिनि इंग्लिश में छा चइबो आहे? रेम्बो सर इंग्लिश में। घणा रंग हूंदा आहिनि हुन में? 7 कलर हूंदा आहिनि। अच्छा, यादि आहिनि कहिड़ा कहिड़ा हूंदा आहिनि? हाँ सर, जो इंडिगो तव्हां ॿुधायो न, इंडिलिटरी बस सेम आहे सर। इंडिगो त ॿी शइ थी वई। इंडिगो हुन में हिकिड़ो कलर ज़रूरु आहे, पर उहो कलर्स कहिड़ा आहिनि? हुनजो हिकिड़ो पर्टिकुलर नालो आहे, हिकिड़ो एक्रोनियम आहे हुनखे यादि करण जे लाइ। उहो कहिड़ो आहे?
जेकॾहिं तव्हांखां कोई पुछे इंडलट जा रंग कहिड़ा आहिनि त तव्हां कीअं ॿुधाईंदो, उन कीअं ॿुधाईंदो, उनखे डिफाइन कंदड़ हिकिड़ो एक्रोनियम आहे, हिकिड़ो अंग्रेज़ी में हिकिड़ो सिंधी में, ॿिन्ही में कोई हिकिड़ो यादि आहे? महिरबानी सर वकास वो रंग हूंदा आहिनि रंग त हूंदा आहिनि, ज़ाहिर आहे जेके इंडलट जा ॻाढ़ा रंग हूंदा ॻाढ़ो आहिनि। हा, पर उहो हिकिड़ो आई एम आस्किंग अबाउट द जी जी वर्ड एन एक्रोनियम which defines the colors of the indolent, which defines the color of the rainbow. वो आई डोंट हिकिड़ो नो सर, माजरत सर। कोई बात नहीं है। शादी साहब अगेन जी, शादी साहब सर वेब गियर। वेब गियर कहते हैं, ठीक है। तो आपको गित पिसाणो। मालूम क्या है सिंधी में? गित पिसाणो। गित पसाणो, यह गुत्त पसानो। जी सर सर। गुत्त पसानो, गुत्त पिसाणो। गुत्त पसानो, गुत्त पिसाणो। हाँ गुत्त पसानो। णो नहीं है, नो नो है। णो कहेंगे तो नून के साथ नो। कोई कलर नहीं आता, नो कहेंगे तो नून नीरो की जगह पर जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, ठीक है। ओके। नून इज ओके नीरो। सर। णो कहेंगे तो णून से आपको णून से ढूंढना पड़ेगा कलर कौन सा है, क्योंकि तमाम हरूफ जो है वो कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गे गाढ़े को कर रहा है, जी जी। ते तुरंजी को कर रहा है, तो इस तरह से णो कहेंगे तो णो में ढूंढती रहेंगे णो का कलर कौन सा है, तो नो कहेंगे तो उससे नीला आएगा, नीरो आएगा, राइट। गुत्त पसानो, थैंक यू वेरी ओके मच सर। थैंक यू। साहब। गुत्त पसानो रिवाइज करना भी जरूरी है ना, कि जो चीजें पढ़ चुके हैं तो वो हमें याद हो। तो आज का जुमला जो है, आजकल आप नजर नहीं आते। हम अक्सर पूछते हैं ना, कभी बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो तो हम कहते हैं आजकल आप नजर नहीं आते, आई कांट सी यू नाउ डेज, व्हाई डोंट वी मीट नाउ डेज। आजकल मिल क्यों नहीं रहे आपसे, आजकल आपसे मुलाकात ही नहीं हो रही, आजकल आप नजर ही नहीं आ रहे। कभी कभार पड़ोसी से भी पूछ लेते हैं, जब पाड़े में रहे तो घर में रहे तो छाकाणि सुबुह जो जॉब ते ताम निकिरी था वञो, बल्कि बेशतर घर जा भाती निकिरी था वञनि पिया, ख़वातीन हुजनि या और मर्द हुजनि, वो निकिरी था वञनि, वरी राति जो थी मुलाक़ात थिए, ऐं राति जो अचे थो माण्हू त वरी घर भातियुनि सां पूरो त कॾहिं कॾहिं ईअं थो थिए पियो। समटाइम्स इट हैपन्स के यू सी योर नेबर्स आफ्टर अ वीक ऑन द वीकेंड, एंड समटाइम्स अगर वीकेंड पर आपकी कोई मसरूफियत है तो फिर नेक्स्ट वीकेंड पर मिलते हैं, फिर आप मिलते हैं तो कहते हैं आजकल आप नजर नहीं आते। तो जवाब मिलता है हाँ यार मसरूफ था, शहर से बाहर था, या जवाब मिलता है आप भी तो नजर नहीं आते, हाँ आप भी सारा दिन जॉब में बिजी हैं, हम भी सारा दिन जॉब में बिजी हैं, तो आजकल आप नजर नहीं आते को सिंधी में कहेंगे अजुकल तव्हां नजर न था अचो। अजुकल तव्हां नजर, आजकल का लफ्ज है अजुकल है, और ये कॉमनली मिला के लिखा जाता है। वैसे तो अज जो है ये अलग से लिखा जाता है और कल है अलग से लिखा जाता है, लेकिन ये दोनों अल्फाज आजकल जब एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो वो एक साथ लिखे जाते हैं। जैसे उर्दू में भी इसको मिलाकर भी लिखा जाता है, अलग अलग भी लिखा जाता है और मिलाकर भी लिखा जाता है। जिस तरह से सिनेमा के पोस्टर्स पर आपने आज शब को, 3 अल्फाज हैं, आप जो है वो मिले हुए भी लिखे हुए देखते हैं, जिसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं आजश बकू, तो ये होता है आज शब को यानी टुनाइट। इस तरह से इंग्लिश में भी है, जैसे नाउ डेज आप देखें, नाउ डेज बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ है नाउ अ डेज, हालांकि ये 3 अल्फाज हैं, नाउ अलग है, अ अलग है, डेज अलग है, लेकिन ये जब मिलाकर ये लिखे जाते हैं, जिस तरह से एवरी डे वो एक साथ मिला के लिखा जाता है, जिस तरह से क्लासरूम एक साथ लिखा जाता है, क्योंकि वो एक लफ्ज बन जाता है। तो सिंधी में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जो जब एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो वो एक लफ्ज बन जाता है। एक से जब 2 हुए तो शान यकताई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना मैंने बनवाई नहीं। तो अज कल है जब साथ आएगा तो साथ लिखा जाएगा। वैसे अज यानी आज अगर लिखेंगे तो अलग से लिखेंगे, और कल है यानी काल, जो हमने आपको पढ़ाया भी था कि काल है या कल है जो है वो अलग लिखा जाएगा, लेकिन अजकल जब आएगा तो एक साथ लिखेंगे। अलिफ पर जबर, ये पर पेश, काफ पर जबर और लाम पर जेर आती है, लेकिन वो जब रवानी में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साकिन है। हे पर जबर, अजुकल कल है, अजुकल है, अजुकल है, अजुकल। जब पढ़ेंगे तो एक एक लफ्ज है जे करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक, वो एक साथ रवानी पढ़ेंगे। अजुकल है, तवहां आपको पता है तवहां या अवहां आपके लिए इस्तेमाल होता है, आपके लिए तवहां, यू बट इन रेस्पेक्ट, आउट ऑफ रेस्पेक्ट। अवहां या तवहां मीन्स यू, आपके तौर पर इस्तेमाल होता है। तवहां, नजर, नजर को नजर ही बोलेंगे। न जो है वो उर्दू में भी है, सिंधी में भी है। न था मीन्स नहीं आते, न था अचो मीन्स नहीं आते या नहीं आ रहे। न था, नून जो है वो बजाते खुद एक ही आधे पद पर मुश्तमिल एक ही लफ्ज है, और उसके सहारे के लिए हम हे का इजाफा उसमें करते हैं। न था, थे अलिफ था, थे अलिफ जबर था, ये उसका हिज्जे है, थे अलिफ जबर था। और अचो का हिज्जे है अलिफ पर जबर, अलिफ जबर
अलिफ जबर अ, चे वाव जबर चो, अचो। याद रखिए ये खत्म हो रहा है हुरूफ इल्लत में से किसी एक पर, यानी हरफ इल्लत पर, और जब खत्म हो रहा है हरफ इल्लत पर तो वो जबर के प्रोनाउंसिएशन के साथ मिला हुआ है। अजुकल तवा नजर न था चो, या अजुकल अहा नजर न था, ये आपने याद रखा। ये नून गुन्ना है, इसको तवहान नहीं पढ़ेंगे, तवहा। देयर इज नो मैकेनिज्म इन सिंधी टू नो व्हिच नून इज गुन्ना एंड व्हिच नून इज नॉन गुन्ना। ठीक है, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। व्हेन यू हैव ग्रिप ओवर लैंग्वेज यू विल कम टू नो कि व्हिच आर द वर्ड्स कि जहां पर जिनमें लफ्ज़न जो पछाड़ियूं नून घुणे ते ख़त्म थी थियनि, नून गुने ते ख़त्म थी थियनि, ऐं किथे जेको आहे सो इहो गुनो न आहे, किथे इहो नान गुनो आहे, नॉन गुनो आहे। तो अॼुकल्ह तव्हां, दिस इज नून गुना। आप अपनी सहूलत के लिए कोई इस पर निशानी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे नून गुन्ना और नून आम नून सिंधी में एक तरह से ही लिखा जाता है। अॼुकल्ह तव्हां, तव्हां, दिस नॉट तव्हां न, जब आप पढ़ते हैं तव्हां न नहीं पढ़े, तव्हां, तब हाँ, तब हाँ, दिस इज नॉट तो। ये भी एक मतलब है कि आपको कहां पर इसको तो पढ़ना है, कहां पर तब पढ़ना है। ये तव, ते और वाव अलग अलग है। तब हाँ, अब हाँ भी पढ़ेंगे तो अलिफ अलग वाव अलग। अब हाँ, ओ हाँ नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसको तोहान और ओ हान पढ़ते हैं। दिस इज नॉट तोहान, दिस इज तब हाँ। ते का प्रोनाउंसिएशन अलग है, वाव का की आवाज अलग है, ते का सुर अलग है, वाव का सुर अलग है। तब हाँ, तब, ये दो से तब तोड़ें लफ्ज को, त अलग है, व अलग है। तब, ते पर जबर है, वाव पर जेर है। हाँ, ये एक ही आवाज है। लफ्ज को समझें, लफ्ज क्या है, हर्फ क्या है और आवाज क्या है, जिसको मैं पद भी बोलता हूं। ये तीनों चीजें आपने डिफरेंशिएट करनी है टू अंडरस्टैंड दी प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड, हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड। इसके लिए तीन चीजें समझना पड़ेंगी कि लफ्ज कहां से कहां तक है, उसके हरूफ कितने हैं और उसकी आवाजें कितनी हैं। अब इसके हरूफ अगर आप तव्हा के हरूफ अगर आप गिनेंगे तो ते अलग है, वाव अलग है, ये दो हरूफ, हे अलिफ नून 5 हरूफ पर मुश्तमिल है। लेकिन इसकी आवाजें त व, त अलग आवाज है, वाव अलग आवाज है, हाँ पूरी आवाज है। त और वाव आधी आधी आवाज, आधे आधे पद पर मुश्तमिल, हाँ पूरी आवाज है, क्योंकि ये गुन्ना है। तो ये तो हान नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे तब हाँ, तब, तब, सेट लाइक तब या अब, हाँ, दिस इज हाँ। अॼुकल्ह तव्हां, लुक हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग इट, अॼुकल्ह तव्हां नजर नथा अचो, नजर नथा अचो, आजकल आप नजर नहीं आते। इज इट क्लियर? और अगर आप यही सवाल पूछ रहे हैं किसी हम उम्र से या पाण खां नंढे खां सवाल था कयो, तव्हांखां उम्र में नंढो आहे, तव्हांजो हुजाए तो दोस्त आहे, कॾहिं कॾहिं को 2-3 साल वॾो बि हूंदो आहे दोस्त, पर हुजाए तो हूंदो आहे तो तव्हां सां तूं करे ॻाल्हाईंदा। एज आई टोल्ड यू के उर्दू में 3 मदारिज हैं, उर्दू में 3 दर्जे हैं, आप, तुम और तू। लेकिन सिंधी में 2 ही मदारिज है। सिंधी में है तव्हां या अव्हां, एक ही चीज है, और दूसरा है तू। तुम के लिए भी इस्तेमाल होता है, तू के लिए भी इस्तेमाल होता है, राइट। तो अगर आपका कोई हम उम्र है या उम्र में छोटा है, जिससे आप फ्रैंक हैं, तो उसको आप यही जुमला कैसे बोलेंगे, तव्हां की जगह पर तू आएगा, थो की जगह पर, था की जगह पर थो आ जाएगा, अचो की जगह पर अची आ जाएगा। ये हो जाएगा अजुकल है तू, अजुकल तू मीन्स तुम। नजर नथो अची, नथो अची मीन्स नजर नहीं आते या नजर नहीं आ रहे। आजकल तुम नजर नहीं आते, इंग्लिश में तो वही यू रहेगा, उसमें इंग्लिश में तीनों के लिए यू, आपके लिए भी यू है, तुम के लिए भी यू है, तू के लिए भी यू है। सिंधी में तू जो है वो तुम और तू के लिए है, लेकिन इंग्लिश में एक ही लफ्ज है। उर्दू में तीनों के लिए अलग अलग लफ्ज है। उर्दू में अगर बहुत ही ज्यादा फ्रैंक हैं या याराना है, किसी मतलब बड़े अरसे से आप या कोई मतलब कोई फ्रैंक आपका दोस्त है या आपका भाई है छोटा सा, आजकल तू नजर नहीं आ रहा, तो हम उनसे ऐसे पूछेंगे। लेकिन सिंधी में यही है, तू का भी यही है, तुम का भी यही है। अजुकल है तू नजर नथो अची, अजुकल है तू नजर नथो अची, आजकल तुम नजर नहीं आ रहे, आजकल तुम नजर नहीं आते। दिस वाज सेंटेंस ऑफ द डे। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, वरना we'll move forward. Any questions? Any questions regarding the word of the day or the sentence of the day? If you have questions, you can ask. Okay. You have a question. सर
सर पता ये करना है कि कोई अगर दोस्त जिस तरह के मेरे साथ बैच में डॉक्टर हो तो मैं उसे ऐसे मजाक में कहूँ कि डॉक्टर आजकल तो नजर ना ठो अच्छे, हाँ जी, उसका नाम मुखातब करेंगे उसमें उस बंदे का। करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल उसी तरह से कि मिस्टर असलम, आई कैन नॉट सी यू टुडे नाउअडेज, या असलम आजकल तुम नजर नहीं आते, सलीम आजकल तुम नजर नहीं आते, इरफान आजकल तुम नजर नहीं आते, इरफान आजकल तुम नजर नथो अची, सलीम आजकल तुम नजर नथो अची, मुस्लिम आजकल तुम नजर नथो अची, इमरान जकरिया आजकल तव्हां नजर नथा अचो। तो नाम ऐड करने से, वो तो नाम ऐड करेंगे या शुरू में आखिर में ऐड करेंगे, तो उससे कोई जुमले की फॉर्मेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, जुमला वैसे ही रहेगा, या शुरू में आखिर में ऐड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं ये जुमला कि अजकल तवा नजर न था अचो, तो मैं ऐसे पूछूंगा कि इमरान जकरिया साहब अजकल तवा नजर न था अचो, या अजकल तवा नजर न था अचो इमरान जकरिया साहब, शुरू में लगाएं आखिर में लगाएं, उससे जुमले की फॉर्मेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रामेटिकल जुमला वही रहेगा, सिर्फ नाम ऐड करना पड़ेगा। थैंक यू। वेलकम। एनी अदर थैंक यू क्वेश्चंस? सर। थैंक यू। वेलकम, वेलकम सर। एनी अदर? जीशान अहमद साहब, ये क्वेश्चन। जी जीशान साहब, क्विक। सर ये थो को एंड में लगा सकते हैं? सॉरी, हाँ, थो के एंड में लगा सकते हैं, नजर न चीज हो, लेकिन उसमें रवानी नहीं रहती, उसमें वो रिदम नहीं रहता, रिदम नहीं रहता, ठीक है। तो आजकल तो नजर न तो ची इज द फ्लुएंट सेंटेंस, एक फ्लो में है, उसके फ्लो टूट जाता है। आजकल तो नजर न ची थो, कुछ इलाकों में कंदकोट कश्मीर में बोला जाता है मामा आजकल तो नजर न ची थो के ना घुमदो थी तो वो होता है, लेकिन फ्लो जो है वो जुमले का इस तरह से, जिस तरह से रखा गया है, वैसे वो गलत नहीं है, वो भी जो आप कह रहे हैं ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन फ्लो इसमें रहता है, ठीक है। चलें जनाब, एनी अदर क्वेश्चंस? इफ यू हैवंट एनी क्वेश्चंस, वी आर कमिंग टू दिस। कहानी लिखो मकाल में जोड़ियो, कहानी लिखो मकाल में जोड़ियो। कल हमने जब ये सेगमेंट किया था तो उसमें मोहम्मद हमजा साहब ने कहानी सुनाई थी, शाजिया सराज साहबा ने, आयशा तारिक साहबा ने, आयशा खान साहबा ने, वकास अली साहब ने, अफरोज साहबा बुधाई कहानी, आसिफ इकबाल साहब ऐं फ़ाइज़ा असांखे हिन ते कहानी ॿुधाई हुई। Now who will share his story about this? Not more than 5 to 7 sentences, just 5 to 7 sentences. Mohammed Sharjeel Saab, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मोहम्मद शर्जील साहब? जी सर। जी शर्जील साहब फरमाइए। एक छोकरी रोलर शूज पहरी सड़क जी किनारे ते हिक गुलड़ सा हिलण रही हो। हाँ, पहले तो सड़क वो को हटा सड़क दें, सड़क सिंधी में नहीं है, सिंधी हम रोड कह सकते हैं या रास्ता, रस्तों कह सकते हैं, सड़क सिंधी का लफ्ज नहीं है, ठीक है। सड़क रोड सिंधी कहते का हैं, लफ्ज, रोड। हाँ रोड कह दें, रोड कह दें या रस्तों कह दें, रस्ते सा, रस्ते सा आप कह सकते हैं, सड़क इज नॉट अ सिंधी वर्ड। हाँ, हो रोड गाड़ियन जी एतबार सां ॾाढो खतरनाक हुई। हुयो, अचानक हुयो, हुई is used for feminine, road is a masculine, हुयो। अचानक गुलड़ रोड जी तरफ दौड़ी। अचानक सिंधी में नहीं है, ओचतो कर दें, ओचतो, ओचतो जी। गुलर दौड़ी नहीं है, गुलर ड्रोड़ियो, गुलर इज अ मेल, गुलर इज अ मैस्कुलाइन, ड्रोड़ियो। अब पढ़ें दोबारा जुमले को, छोकरी पाण जी बदन के जुमला ना जो संभाली। मैंने करेक्ट किया उसको दोबारा पढ़ें। अच्छा, ओके सर। अचानक का क्या बोला आपने? ओचतो, ओचतो, ओचतो गुलड़ रोड जी तरफ दौड़ियो। हाँ, ड्रोड़ियो, 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 ड्रोड़ियो दौड़ियो जी। छोकरी पाण जी वजन के ना संभाली रोड जी तरफ हिली। हाँ, न संभाले सगी, न संभाले सगी, न संभाले ना सगी, संभाले सकी। नहीं ना संभाल संभाले सकी सकी। जी, नहीं संभाल सकी जी। एक गाड़ी तेजी से इन्हीं तरफ अची रही हो। हुई, हुई, गाड़ी इज हुई। अ फीमेल, इज अ फेमिनाइन, गाड़ी इन तरफ अची रही हुई। करेक्ट करते जाएं, जो मैं करेक्शंस कह रहा हूँ करते जाएं करेक्शंस जी। एक गाड़ी तेजी से इन्हीं तरफ अची रही हुई। एक छोकरो जेको उही मौजूद हो। उते मौजूद हो, फौरी उते छोकरी उते उते मौजूद हो, उते वहां मौजूद एक था। छोकरो जेको उते मौजूद हो। वो फौरी छोकरियन के
बचाने लाई छलांग लगायो। छलांग के सिंधी में कहते हैं, सिंधी में कहते हैं ट्रपो, 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 ट्रपो ॾिनो, हुन छोकिरीअ खे बचाइण लाइ ट्रपो ॾिनो या टिप ॾिनो, टिप ॾिनो, टिप कर दें, टिप ॾिनो या ट्रपो ॾिनो, ट्रिप ॾिनो जी। वो पौरी छोकरियन के बचाने सर लाई ये तो 15 सेंटेंसेस हो गए, 5 से 7 सेंटेंसेस का कहा था मैंने, वाइंड अप कीजिए सर। जी, लास्ट सेंटेंस है जी बस। जी जी। अहू छोकरो ॾाढी बहादुरी सां छोकरी ऐं गुलड़ के बचायो। गुल्लड़ नहीं है, गुल्लर, गुल्लर रे, गुल्लर, गुलड़, गुल्लर जी। जी सर। पढ़िए, दोबारा पढ़िए लास्ट सेंटेंस। अहो छोकरो ॾाढो बहादुरी सां छोकरी ऐं गुलड़ के बचायो। हाँ, उन छोकरे, इसको कर दें, उन छोकरे ॾाढी बहादुरीअ सां, उन छोकरे ॾाढी बहादुरीअ सां, उन छोकरे ॾाढी बहादुरीअ सां गुलर ऐं छोकिरीअ खे बचाए वरितो, गुलर ऐं छोकिरीअ खे बचाए वरितो, गुलर ऐं छोकिरीअ खे। हाँ, इसको दोबारा पढ़ें, आखिरी सेंटेंस उन को। छोकरे ॾाढी बहादुरी सां गुलड़ ऐं छोकरी के बचाए वरितो। गुलड़ नहीं कहें, गुलर, 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 र र र रे रे रेल, रे रेल, नॉट रे माड़ी, रे रेल, गुलर ऐं छोकरी खे बचाए वरितो। सेठ, सेठ, हरियप, हरियप, सेठ। अहू छोकरे उन ॾाढी छोकरे, बहादुरी आहू सां नहीं है, उन छोकरे, उन छोकरे, आई टोल्ड यू, उन छोकरे। ॾाढी बहादुरी सां गुलर ऐं छोकरी के बचाई वरितो। गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये थे शर्जील साहब, मोहम्मद शर्जील साहब, मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब। सेशन इज अबाउट टू एंड, तो जैसे ही ये हम रिकनेक्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे और आप अनम्यूट करेंगे, हम आपकी स्टोरी से आगाज करेंगे, राइट। तो मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब, जी मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब, यू कम ऑनलाइन, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और ऑनलाइन आ जाइए ताकि हम आपकी स्टोरी सुन सकें। प्लीज ट्राई टू कीप इट अप टू 5 to 7 sentences, नॉट मोर देन दैट। लंबे से लंबी कहानी, तवील से तवील कहानी आप लिख सकते हैं। आप सब लोग बड़े टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि 5 से 7 सेंटेंसेस के अंदर हो। लेकिन आप अपना पेन, कलम और कागज जो जिस पर आपने लिखी है उस पर आप करेक्शन के लिए तैयार हैं। जैसे करेक्ट करता जाऊं तो आप फौरी फौरी करेक्ट करते जाएं। जी ज़करिया, इमरान ज़करिया साहब। सर मेरी मादरी जबान तो सराइकी है, लेकिन थोड़ी गलतियां हैं सर। मैंने कोशिश तो सर ये बहुत की है तमीज कि ना सिंधी बांधे, में वो तमीज ना कर बांधे, लूं। क्विक 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 क्विक, तमीज ना बांधे। आई नो कि आपकी मादरी जबान नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था, और मुझे ये भी पता है कि आपकी मादरी जबान सराइकी है। मेरा जस्ट स्टार्टेड। उनवान उनवान है सर, स्कूल पार्किंग स्टैंड। हिकड़ो दफा असे अपने प्यू दे नाल सुबह सवेरे अपनी गाड़ी स्कूल जा रहे ये तो थे। आप सराइकी में, ये तो आप सराइकी में बता रहे हैं। आप अगर ये कॉन्सेप्ट है कि सराइकी और सिंधी मिलते जुलते हैं, ठीक है, लेकिन इतने भी नहीं मिलते जुलते कि आप सराइकी बोलेंगे और हम समझेंगे कि आप सिंधी में पढ़ रहे हैं। दिस इज सराइकी, दिस नॉट सिंधी। नाल सिंधी में लफ्ज ही नहीं है, प्यू सिंधी में लफ्ज ही नहीं है। सिंधी में है पीयू, नाल का लफ्ज है गड। इफ यू हैव रिटन इन सिंधी, प्लीज शेयर इन सिंधी, नॉट इन सराइकी। एक दफा जिक्र है कि असे अपने प्यू दे नाल सुबह दिस इज सवेरे सराइकी, दिस इज अपनी सराइकी गाड़ी सर, दिस इज सराइकी सर। आपके पास लिखा हुआ है या आप फिलबदी इसको कर रहे हैं, आप एडलिप कर रहे हैं, इसको एक्सटेम्पोर पढ़ नहीं रहे सर, हैं? मैंने लिखा हुआ जा रहे था जैसा ही स्कूल पार्किंग स्टैंड पहुंचे तो मेरा पुत्र जल्दी जल्दी गाड़ी का फलांग कर रस्ते त्रे स्कूल दी नंदरी छोकरियों नु दिठे। कंटिन्यू स्कूल कंटिन्यू छोकरियों ने दिठे। उन्हां च हिक छोकरी दे हाथी च नंदड़े कुत्तो कण रसी सी। वो कुत्ता उन्हां नु पसंद आया। असा स्कूल दी पार्किंग स्टैंड
इच ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ आप छोटे आप छोटे आहो पर मेहरबानी करिए कि इस रस्सी मेरे हाथी च फलांगो यूं ही मेरा प्यू सामने गाड़ी दे शीशे का सारा तमाशा सर प्लीज कैन यू प्लीज स्टॉप देयर। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। आप इस पूरे को उर्दू में बताएं, 5 से 7 जुमलों में बताएं, एडलिब बताएं, एक्सटेम्पोर बताएं, छोड़ें लिखे हुए, क्योंकि आप अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहे। आप उर्दू में बताएं, आपके पास कॉन्सेप्ट होगा ना कि आप उर्दू में क्या कहना चाह रहे हैं। 5 से 7 एक दफा का सेंटेंस। जिक्र है कि हम स्कूल के पार्किंग स्टैंड में एक दफा का जिक्र है कि हम अपने अब्बू के साथ सुबह सवेरे अपनी गाड़ी पर स्कूल जा रहे थे। जैसा ही हम स्कूल की पार्किंग स्टैंड पर पहुंचे तो मेरा बेटा गाड़ी से जल्दी से फलांग कर रास्ते में 3 स्कूल की बच्चियां उसने देखी, जिसमें से एक छोटी बच्ची ने वो पहियों वाला वो शूज पहने हुए थे। उनमें से एक बच्ची के पास छोटा सा एक कुत्ता था। मेरे बेटे को वो कुत्ता पसंद था। उसने स्कूल की उस बच्ची से बोला कि आप छोटी हो, आपसे ये भाग जाएगा, मेहरबानी करके इसकी रस्सी मेरे हाथ पकड़वा दो। जबकि मेरा अब्बू ये सारा कुछ सामने गाड़ी के शीशे से देख रहा था। उसको ये बात हरगिज अच्छी नहीं लगी कि हम स्कूल में सबक पढ़ने आए हैं, ना कि स्कूल की पार्किंग में कुत्ते की रस्सी को पकड़ने आए हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान ज़करी साहब। उसमें आपने सिंधी के इतने कम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मैं अगर उसकी करेक्शन करने बैठूं तो 2 सेशंस लग जाएंगे, क्योंकि पूरा रीराइट करना पड़ेगा सिंधी में। जैसे शर्जील साहब ने पढ़ा तो उसमें 2-4 अल्फाज की कहीं कहीं पर ज़रूरत थी, तो मैंने करेक्ट किए। क्योंकि इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश की कि उर्दू में आप पढ़ें, क्योंकि वो जो आप सिंधी वर्जन, जो आपकी नज़र में सिंधी वर्जन था, जो कि सराइकी ज़्यादा था, वो समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे अल्फाज, बल्कि 99% अल्फाज उसमें सिंधी के नहीं थे, तो उसमें करेक्शन इसलिए नहीं बनती कि वो बेसिकली सिंधी में लिखा ही नहीं हुआ, तो मैं उसको करेक्ट क्या करूँ। तो इसका तर्जुमा करना, इट मीन्स आई विल हैव टू ट्राई फॉर दैट ना। तो इसलिए मतलब ट्राई टू, मैं सिर्फ यही देखना चाह रहा था इससे 2-3 चीज़ें आपकी नोट करना चाह रहा था। एक तो ये कि ओरिएंटेशन कितनी हुई है, कुछ ना कुछ जो है वो जुमले की फॉर्मेशन बेशक गलत ही हो, लेकिन किस हद तक आप कर पा रहे हैं, ये आपकी असेसमेंट भी है एक तरह से। तो बहरहाल आपका इनपुट आया, थैंक यू मोहम्मद इमरान ज़करी साहब, थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स जिन्होंने कल स्टोरी नहीं सुनाई थी, एनीबडी एल्स फ्रॉम यू हु कैन? रबिया सर। जी रबिया साहब। सर, हिक ॾेहां मां पंहिंजी नीरो गाड़ी मां वंजस थी। नीरी गाड़ी है, नीरी गाड़ी, नीरो गाड़ी नीरी। तो तब होगा जब गाड़ी जो है वो मेल हो, जो मैस्कुलाइन है। नीरी गाड़ी है, नीरी गाड़ी है, मैं वयुस पे, नीरी गाड़ी है, मैं वयुस पे, मैं जा रहा था, या वनी रहे हो इस, या वयुस पे, नीरी गाड़ी है, मैं वयुस पे। अब इस जुमले को आप दोबारा पढ़ेंगे, जब आप करेक्ट कर लें तो आप इसको दोबारा पढ़ेंगे। हिक ॾेहां मां पंहिंजी नीरी गाड़ी गाड़ी है, वो गाड़ी बोले, गाड़ी 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 डाल डेडर, डाल डेडर, गाड़ी 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 मां गाड़ी में वह उस पे, माँ नहीं, माँ मीन्स उसमें से, मैं वह उस पे, गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी में वह उस पे, गाड़ी में वह उस पे। ये सब नोट कर लें। ये सिर्फ, अच्छा, दिस इज नॉट अबाउट अ पार्टिसिपेंट, दिस इज नॉट अबाउट रबिया साहिबा एंड मी, दिस इज अबाउट एवरीबडी इज लर्निंग। तो आप नोट करें कि रबिया साहिबा गलतियां कौन सी कर रही हैं और वो कैसे करेक्ट हो रही हैं, वो आप भी नोट डाउन करें ताकि आप उन गलतियों से बच सकें। तो ये दिस इज एन ओवरऑल लर्निंग। ऐसा ना हो कि रबिया साहिबा पढ़ रही हैं और आप तब तक अपना सबक पक्का करेंगे, उसके बाद मुझे पढ़ना है। तो दिस इज फॉर बीइंग नोटेड फॉर एवरीवन। जी बेटा पढ़े। हिक ॾेहां मां पंहिंजी नीरी गाड़ी में वयसि पई। वयसि पए, पए, वयसि पए, हमजा पर ज़बर, वयसि पए। मां देखो ता, मां ॾिठो, ॾिठो, देखा,
डिठो डिठो ठेठूठ डिठो डिठो मां डिठो ता रोड ता किनारे रोड जे बा किनारे ॿारनि रोड जे किनारे रोड जे किनारे डाल पर दबर रोड जे किनारे जे किनारे बा ॿारनि हिकु छोकिरी ऐं हिकु छोकिरो स्कूल वञे थो। ॿ ॿार नहीं होगा ॿ ॿार उसके बाद क्या है ॿ ॿार नहीं ॿ ॿार हिकु छोकिरो ऐं छोकिरी हिकु छोकिरो ऐं हिकु छोकिरी स्कूल वञी रहा हुआ यानी जा रहे थे वञी रहा हुआ पास्ट कंटिन्यूस टेंस ज़मान माजी इस्तमरारी आएंगे उस पर ग्रामर पर ज़मान माजी इस्तमरारी वञी रहा हुआ दे वर गोइंग। अब दोबारा पढ़े इसको। हिकु छोकिरो ऐं हिकु छोकिरी स्कूल वञे रहा हुआ वञी बोले वञी रहा हुआ ये मुन्य हमने पढ़ा था जीम के नीचे एक और नुक्ता लगा दें न्य जीम के साथ एक नुक्ता लगा दें ये मुन्य जी वञी रहा हुआ। शाबाश शाबाश आगे बढ़े। ऐं थोड़ा ही आगे से इसको ट्रांसलेट नहीं होता है थोड़ा आगे थोरो अॻिते अॻिते अलिफ ये गऊं ते तारो ये यको अॻिते या अॻियां भी हो सकता है या अॻिते अॻियां थोड़ो अॻियां या थोरो अॻिते हिकु छोकिरो ऐं हिकु छोकिरी जिन मां छोकिरी वटि हिकु गिलीरो नहीं है गुलेरो आहे गुलर आहे नहीं हुयो माजी की बात कर रहे हैं हुयो गुलर हुयो मीन्स था उसके पास एक पपी था गुलर हुयो या गुलर हो जो ही छोकरी के गिराने को क्या कहते हैं जेको जो को कहें जेको ही छोकरी को कहें हिन छोकरी गिराने को कहते हैं केरायण। आप क्या कहना चाह रही हैं गिराने वाला था या गिरा रहा था? जी गिराने वाला था। उन छोकरी के केरायण वारो हो सेठ बस इतना ही लिखा है। अच्छा सेठ ये लास्ट सेंटेंस दोबारा पढ़े। जेको हिन छोकरी के गिराने वारो केरायण वारो काफ ये रे अलिफ हमजा नून वण केरायण के काफ ये रा रे अलिफ इण हमजा नून केरायण वारो हो जेको हुन छोकरी के केरायण वारो सेठ जेको हिन छोकरी के किरायण वारो हो हुन छोकरी के हुन उस हमने पढ़ा था इस यानी हिन उस यानी हुन जेको हुन छोकरी के किरायण वारो सेठ जेको हुन छोकरी के किरायण वारो हो शाबाश। इसको जो मैंने करेक्शंस किए हैं क्लास के बाद इसको 2-3 बार पढ़िएगा ठीक है रिवाइज कीजिएगा कि करेक्शंस के बाद उसकी शक्ल क्या है ठीक है। थैंक यू। यस सर थैंक यू वेलकम जी। हु इज एल्स who wants to share this story or a dialogue? अभी तक डायलॉग कोई एक भी नहीं आया मुकालमा कोई एक भी नहीं आया किसी की जानिब से भी। एनीबॉडी? आई एम गोइंग टू गिव मार्क्स ऑन दिस। वालेकुम सलाम सर। जी नदीम सर केड़ा कुछ आयो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हो हां अल्लाह जैसान। अच्छा असल में सर मु डायलॉग लफ्ज ॾिठो हुयो पर मु डायलॉगन ते ठाही हुई सजी। हां ॿुधायो पढ़ियो ठा? हां बिल्कुल पढ़ो। अच्छा सर मु फर्जी नाला जेके लिखिया हुया ॿारनि हुंदा ही फर्जी नाला है ना कहानी में फर्जी नाला हुंदा है। प्लीज लिसन आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लिसन टू दिस स्टोरी। This is the very first story for which I'm being told that there are dialogues in it. मुकाल में है और कैरेक्टर्स के नाम है पहली मर्तबा। एक छोकरी और एक छोकरों की जगह पर आपने अगर गुड्डू पप्पू बबली अगर इसमें नाम डाल लिए होते तो you would have been
titled as a more efficient storyteller. So let's see what Nadeem Saab has done. Ji, Nadeem Saab. जी सर, ये जेको कुत्ते खे पकतल जेका नंढी आहे, उनजो नालो निगत आहे फर्ज़ी, ऐं छोकिरो तव्हां मूंखे न ॿुधायो, तव्हां स्टोरी पढ़णु शुरू कंदो त असां सम्झी वेंदा त निगत केरु आहे. ठीक है, ठीक है. निगत, रुक रुक मोती रुक, कुत्ते खे गेलींदी रही पर उन खां नथे रुकियो. उन करे दां कंदे अदा मूंखे फीथन वारो बूट पातल आहे, उन करे गुलर खे काबू नथी करे सघां, महिरबानी करे उनखे रोकण लाइ मुंहिंजी मदद कर. फिदा. हाँ दी, ये फिदा ये है, ये वाले फिदा हैं जो मतलब हाथ जिन्होंने बढ़ाया हुआ है, जहाँ हाथ जो बढ़ाया है वही. ओके ठीक है. फिदा. हाँ दी, आव अचां थो, पाण थो उनखे पकड़ियां, अॻियां कार बि अची रही आहे, किथे उन में टकराइजी न वञो. निगत. जी अदा थोरी जल्दी करियो. फिदा. डोड़ो पाईंदे गुलर खे वेझो पहुतो. स्कूल वेंदड़ छोकिरी नालो रेशमा. स्कूल वेंदड़ छोकिरी नालो रेशमा पीछे जो है ये येलो फ्रॉक के साथ. हाँ हाँ ओके. अड़े ही ॾिसो, उन ॿाड़ीअ खां गुल नथो रखियो वञे. अबाड़े होॾां कार बची रही आहे, किथे उन सां टकराइजी न वञनि. हैरानगी ऐं अफ़सरदा हालत में थींदे चयाई, करीम जेको भरसा नंढो ॿार बीठो अथसि. जी, जो नहीं देख रहे, जो कार की तरफ देख रहे हैं, रेड कैप के साथ. कार वारे सां मुखातिब थींदे, मामा मामा ख्याल सां अॻियां ॿार आहिनि, एहतियात करियो. कार वारो शिरक भरींदे. शिरक नहीं है, शिरक नहीं, छिरक 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 भरींदे. शिरक तो गुनाह है भाई. शिरक भरींदे, शिरक भरींदे. हाँ शिरक भरींदे. जोर सां हारो ॾींदे, पां पां पां. नोट. रांद रूंद कंदे पंहिंजे ॿारनि ते ध्यानु ॾियणु घुर्जे. हमेशा उन्हनि जे वित आहार करे सघजण वारियूं शयूं ॾियणु घुर्जनि, छाकाणि त एहतियात ज़िंदगी आहे, लापरवाही मौत. बाड़ी जे वस खां गुलर पकड़ण, उहो बि पेरनि में फीथनि वारो बूट हूंदे मुमकिन न आहे. उन करे वालदेन खे उन्हनि शयुनि ते ध्यानु ॾियणु घुर्जे. जितनी मैंने स्टोरी लिखने की कही थी उससे ज्यादा लंबा तो आपने नोट लिखा है आखिर में. अच्छा, इनके नोट न चवंदा आहियूं असां, इनके चवंदा आहियूं मोरल ऑफ द स्टोरी. हमेशा स्टोरी जिते पूरी थी आहे सबक, मोरल ऑफ द स्टोरी. सबक चवंदा आहियूं, सबक. हाँ, सबक, मोरल ऑफ द स्टोरी. इंग्लिश में इनके मोरल ऑफ द स्टोरी चइबो, नोट न चइबो. नोट त इंतबाह हूंदो आहे, तंबीह हूंदी आहे या ख़बरदारी हूंदी आहे. तंबाकू नशी सेहत के लिए मुज़र है जो लिखियल हूंदो आहे न, इहो इंतबाह, इहो नोट हूंदो आहे. आखिर में मोरल ऑफ द स्टोरी हूंदो आहे, त इन मां मोरल ऑफ द स्टोरी छा आहे. थैंक यू. जी 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 जी. नसीहत, जेका नसीहत हूंदी आहे, मोरल ऑफ द स्टोरी. जी हाँ, सिंधी में नसीहत चइबो आहे उनखे. थैंक यू. अच्छा, मुझे ये बताएं कि नदीम साहब ने जो स्टोरी सुनाई सिंधी में, वो ऐसे मेरे मेहरबान के जिनकी सिंधी मादरी जुबान नहीं है, कितने लोगों ने समझी, कितने लोगों ने समझी, और कितने लोगों को इसकी वजाहत की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट थी अपने डायलॉग्स की वजह से, और कैरेक्टर्स की जो है वो डिमार्केशन उन्होंने की उस लिहाज से. तो कितने लोगों ने समझी नदीम साहब ने जो स्टोरी सुनाई? हाउ मेनी ऑफ यू? वालेकुम सलाम करीम साहब, तव्हां ये समझी स्टोरी? जी साईं, ये समझ में अची वई. ठीक है, तव्हां बि स्टोरी ॿुधाईंदो? तव्हां ॿुधाईंदो स्टोरी या सिर्फ़ ये ॿुधाइण लाइ? लिखी कोन्हे पर. ओके ठीक है, लिखी नहीं सर मैंने. ठीक है, ओके ओके. एनीबडी एल्स कि जिन्होंने ये स्टोरी समझी? एनीबडी एल्स जिन्होंने ये स्टोरी समझी? अच्छा, किसी ने नहीं समझी? किसी ने नहीं समझी? नदीम साहब, मैं रिक्वेस्ट यू कि जो आपने पूरी स्टोरी सिंधी में सुनाई, इसको आप अगर उर्दू में सुना दें ताकि सबकी ओरिएंटेशन के लिए, लेकिन मुख्तसर सुनाइए, 5 से 7 ज़्यादा 10 सेंटेंसेस के अंदर सुनाइए कि ये आपने क्या सुनाया. उर्दू में सुनाइए विद कैरेक्टर्स और विद कैरेक्टराइजेशन नेम्स. आप जरा इनको सुनिए कि उन्होंने किस तरह से लिखा है, और फिर आप मुझे बताइए कि कैन यू रीडू योर स्टोरी लाइक दिस, कि उसमें कैरेक्टर्स के नाम हो. जरूरी नहीं कि जो उन्होंने रखे हैं वो आप रखें, या जरूरी नहीं जो डायलॉग्स उन्होंने लिखे हैं वो आप लिखें, क्योंकि एंगल्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. अभी जैसे किसी मेहरबान ने जो है वो हमारे ड्राइवर साहब को हमदर्द दिखाया, या जो हमारे कैरेक्टर हैं, ये वाले कैरेक्टर हैं, जो लड़का है इसके वालिद के तौर पर दिखाया, और कल किसी ने इन्हीं ड्राइवर को कर्ज किया था, कोसा था कि जो है ये किसी हादसे करने के मूड में है. तो नदीम साहब,
कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और इसको थोड़ा सा 5 से 7 सेंटेंसेस में इंग्लिश में, सॉरी उर्दू में सुनाइए, ये जो आपने स्टोरी सुनाई। जी सर। जी। निगत कुत्ते को खींचे, रुको रुको, उस गिरा ना दे। तव्हां जो आवाज़ ड्रॉप तो थे, एकड़ो तो वरी अचो, शुरू खां अचो, निगत खां। निगत कुत्ते को खींचते हुए, रुको रुको, रुक जा फिदा, उसे पकड़ो, एहतियात से कहीं गिरा ना दे। निगत, भाई मैंने पहियों वाला जूता पहन रखा है, इसलिए मैं इसे काबू नहीं कर पा रही, मदद करें, गाड़ी में कहीं क्रैश ना हो जाऊं। फिदा, हाँ मैं इसे पकड़ता हूँ। रेशमा हैरत से, ओ एहतियात बरतो, कहीं गाड़ी से ना टकरा जाओ। कार वाला हॉर्न देते हुए, पां पां पां। मुख्तसर इतना। सही है, ठीक है। और वो उनका भी बता दें, जो 2 कैरेक्टर्स पीछे खड़े हैं, उनका मुख्तसर बता दें कि ये क्या, ये इनके दरमियान क्या गॉसिप्स चल रही हैं, कुछ हल्का सा मुख्तसर 2 जुमलों में बता दें, ये क्या कह रही हैं। और जो आखिरी जो लड़का खड़ा है, करीम, करीम, ये करीम है। करीम कार वाले से मुखातिब होते हुए, मामा मामा ख्याल करना, आगे बच्चे हैं, एहतियात करो। और ये किरदार हो सर। अच्छा, और ये क्या कह रही हैं, ये कौन है और ये क्या कह रही हैं, जरा सा इनका भी एक डायलॉग। रेशमा, 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 क्या कह रही हैं ये? अरे ये देखो, बच्ची से कुत्ता पकड़ा नहीं जा रहा। ठीक है, थैंक यू नदीम साहब, थोड़ा सा ओवरव्यू उसका आ गया, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सबने अंडरस्टैंड किया कि कहानी को इस तरह से बयान किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल में से या आज में से जितने भी स्टोरी टेलर्स थे उसमें से बेस्ट स्टोरी किसकी थी, ये नहीं है। ये सिर्फ आपको एक हमने प्रोवोक किया कि आप सोचें कि ये तस्वीर आपको क्या सोचने पर मजबूर करती है, आप इसको किस एंगल से देखते हैं, इसमें हीरो आप किसको बनाते हैं, विलेन किसको बनाते हैं। ठीक है, वो तो आप पर है कि इस तस्वीर में, क्योंकि तयशुदा नहीं है कि किसका नाम क्या है। जिसका नाम उन्होंने निगत रखा उसका नाम बबली भी हो सकता है, उसका नाम सोनिया भी हो सकता है, उसका नाम क्रिस्टीना भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने फिदा रखा उसका नाम अली भी हो सकता है, उसका नाम गुड्डू बबलू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो आप पर डिपेंड करता है, राइट। तो कैन यू रीडू योर स्टोरी इन दिस स्टाइल, मतलब 1-2 दिन लीजिए और उसके बाद जस्ट टेल मी, जस्ट शेयर विथ मी कि क्या आप इसको रीडू कर सकते हैं। कल जिन्होंने स्टोरी सुनाई थी, किसी ने उसको रिफाइन किया है या किसी ने उसको रीडू किया है या कोशिश की है? अगर कोई ऐसे मेहरबान है तो ही और शी कैन रेज हर और हिज हैंड, हम उनसे सुनकर फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। अगर है कोई मेहरबान कि जिन्होंने कल स्टोरी सुनाई थी और उसको रिफ्रेश किया या किसी तरह से चेंज किया और वो शामिल करना चाह रहे हैं तो वो बताएं, वरना फिर वी विल मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट। एनीबॉडी? चलें जनाब, तो इसको मुख्तलिफ जो इनपुट्स आए हैं इसके हवाले से, अगर आप इसमें कोई तब्दीली या तरमीम करते हैं तो लेट मी नो इन द नेक्स्ट वीक, राइट। अब आते हैं सिंधी आयोटा जी पट्टी यानी कक। कल हमने क्या किया था इस सिलसिले में, कौन बताएगा मुझे कि हमने पट्टी के सिलसिले में क्या किया था, पट्टी को किस तरह से पढ़ा था, क्या किया था? कैन एनीबॉडी टेल मी? कल हमने इस सिलसिले में कौन सा काम किया था? सिंधी आयोटा जी पट्टी या सिंधी हुरूफ तहजी की सौतियाती और तहरीरी जदवलों के हवाले से कल क्या काम किया था? आपने किया था, मैंने तो नहीं किया था। क्या काम किया था? कैन एनीबॉडी शेयर कि वो कौन सा काम था जो हमने कल किया था? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आसिफ सलाम इकबाल। जी आसिफ साहब। मत का इस्तेमाल किया था, उसकी मश्क की थी। मश्क की थी? मश्क नहीं की थी सर, मश्क कब की थी, किसने करवाई? सर वो पहचान की थी, पहचान की थी, रिवीजन किया था इसका। थैंक यू आसिफ साहब, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? कल हमने क्या किया था मद की जदवल के लिहाज से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर मकसूद अली जी मकसूद साहब, क्या ठीक है सर? कल अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल पिया सर। कल तव्हां सर अलमंद आ वारी पट्टी पढ़ाई हुई ऐं उन सां गॾोगॾु उन सां कुझु लफ़्ज़ उचारिया हुया जेके याद आया रैंडमली।
ठीक है, थैंक यू जी सर वही। मकसूद साहब, बड़ी मेहरबानी। मद की जदवल को और क्या कहा जाता है? व्हाट डू यू कॉल मद की जदवल? मद की जदवल का एक और नाम है, वो क्या नाम है? मद की जदवल का एक और नाम है। अस्सलाम वालेकुम। रबिया साहबा, वालेकुम सलाम। जी रबिया सर साहबा, अलिफ की मद, अलिफ की चार्ट। अलिफ का चार्ट या अलिफ की पट्टी या अलिफ की जदवल, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये सलाम किया था गालिबन इमरान साहब ने। सर मैं यही बताना चाह रहा था कि मद की जदवल को अलिफ या अलिफ जी चार्ट बोलते हैं। अलिफ चार्ट या अलिफ की जदवल बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारी छठी पट्टी है, ये हमारी छठी जदवल है, ये हमारी छठी टेबल है। मद या अलिफ जी जदवल है या मद या अलिफ जो चार्ट। एंड वी आर रीडिंग, देखिएगा मेरे स्क्रीन को, सिंधी आयोटा जी पट्टी यानी कक, इन 20 पट्टियों को, इन 20 जदवलों को ओवरऑल मिलाकर सिंधी पट्टी कहते हैं या सिंधी अल्फाबेट की पट्टी कहते हैं, सिंधी अबजद जी पट्टी कहते हैं। द फोनेटिक एंड रिटन टेबल्स ऑफ सिंधी अल्फाबेट्स। अपने जहन को प्रॉम्प्ट कीजिए और शार्प कीजिए ताकि जो चीज आपको बताई जाए वो फौरी आप समझते जाए। तो पहली सिंधी अलिफ बे जो चार्ट, प्लेन चार्ट हमने पढ़ा था, फिर अदाखरी जदवल, आधे हरूफ वाली जदवलें हमने पढ़ी, फिर जबर जो चार्ट, जबर वाली जदवल हमने पढ़ी, फिर जेर जी जदवल, जेर जो चार्ट, जेर जी पट्टी हमने पढ़ी और उसकी मश्क भी की। जबर की मश्क की, जेर की मश्क की, पेश जो चार्ट पढ़े उसे पेश चार्ट अजीब मश्क कैसे, हर मश्क खां पो यू नो दैट यू हैव टू राइट, you have to write that mashq and you have to take a snap of that and you have to send, and there are 2 points on this classwork. Is it clear? So we are going to do this mashq. दोबारा बता दूं कि उस मश्क को भेजने पर नंबर्स हैं। बहुत सारे हमारे मेहरबान जो है शायद उनके लिए क्लियर नहीं है और फिर वो समझ नहीं पाते और कहते हैं हमें 2 पॉइंट्स क्यों नहीं मिले। ये जो हम मश्क करने वाले हैं, दोबारा बता दूं, सिंधी में तो बताया, या मश्क जेका करण वारा आहियूं, हर हिननि मां जहाँ हर पट्टी जेका असां पढ़ंदा आहियूं, जेकॾहिं तव्हां माज़ीअ में असां सां गॾु न रहिया आहियो पोयनि क्लासनि में त ॿुधाईंदो हलां, त जेका असां मद या अल्फ जी जदवल कल्ह पढ़ीसीं, तव्हां हुन में पंहिंजो इनपुट ॾिनो, उहो त ठीकु थियो। हाणे जेका असां हुनजी मश्क कंदासीं, मश्क में छा हूंदो आहे त असां लफ़्ज़ ठाहींदा आहियूं हुन मथां। जेकॾहिं मद या अल्फ जी जदवल आहे त हुन मथां लफ़्ज़ ठाहींदा आहियूं नवां, त इहो मद या अल्फ किथे किथे इस्तेमालु थींदो आहे, वेयर डू वी यूज़ इट, उहो तव्हां नोट कंदा वेंदा आहियो। ऐं नोट करे जेॾी महिल क्लास पूरो थींदो आहे तव्हां हुनजी तस्वीर कढंदा आहियो ऐं उहा तस्वीर एडमिन खे मोकिले छॾींदा आहियो ऐं उन ते तव्हांखे 2 मार्कूं मिलंदियूं। जंहिं न मोकिली ऐं 8 बजे ताईं न मोकिली, द मैक्सिमम टाइम, द डेडलाइन फॉर सेंडिंग दिस असाइनमेंट ऑलवेज whenever we do an exercise is 8 PM in the night. क्लास चाहे 6:30 पूरो थिए, 6:45 पूरो थिए, उन पोइ तव्हांखे 1.25 कलाक 1.5 कलाक हूंदो आहे, तव्हां हुनजी तस्वीर कढी मोकिलियो। हालांकि 5 मिंटनि जो कमु आहे, छाकाणि तव्हां कंदा राइट अवे आहियो, गॾोगॾु कंदा आहियो। ऐं इहो बि यादि रखो त जेको गॾोगॾु थो करे पियो उनजी शीट बि ॿुधाईंदी आहे त ये साथ काम हुआ है, और जिसमें बाद में रन ऑफ द मिल काम किया है, सिर्फ खाना पूरी की है, वो भी शीट बता रही होगी। ठीक है, तो आप ये जहन में जरूर रखिएगा कि आपने साथ साथ ही काम करना है। तो आज मद या अलिफ जी जदवल, ये जो अलिफ वाली जदवल है या पट्टी है या मद या अल्फा वाली जगह जदवल, द चार्ट ऑफ मद और अलिफ, उसकी जो हम एक्सरसाइज करेंगे, जो करने वाले हैं, वो आप एक शीट पर नोट करेंगे, चाहे वो आपका नोटबुक या रजिस्टर हो जिस पर आप रोजाना के नोट्स लेते हैं, उसकी तस्वीर ले सकते हैं, या नहीं तो खाली पेपर ले लें और एक कलम संभाल लें और अभी जो जो प्रैक्टिस होती जाए आप उसको नोट करते जाएंगे। अगर आप ट्रांसलेशन नोट करते हैं या उसका प्रोनाउंसिएशन नोट करते हैं तो दैट विल बी एन एक्स्ट्रा फेदर इन योर कैप, राइट? सो योर शीट सेज दैट कितने इंटरेस्ट के साथ आपने उस मश्क को किया है, आपका कितना इंटरेस्ट था उस वक्त, आप कितनी तवज्जो और तंदही के साथ आपने उसको अंजाम दिया है। सो दिस इज 6th जदवल, जिसके बाद क्या है अपकमिंग आपको पता है, ओ उ ए आई जो चार्ट, उसके बाद नेक्स्ट आएगा ई, अन, इन, उन, आ, ओ, ऊ, ए, आई और ई का चार्ट। ये 20 चार्ट्स हैं, वैसे इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 50 चार्ट भी हो सकते हैं। अलग अलग आवाजें हैं और अलग अलग आवाजों का मतलब सीखने का क्या है, एक तो ये कि जबर या जेर या पेश या मद से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं, वो नए अल्फाज हम सीखें, और दूसरा दोबारा अगेन एंड अगेन वो 52 आवाजें समझने की कोशिश करें जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे डाल है, तो वो कैसे प्रोनाउंस होंगे। दिस इज टू इंसिस्ट, दिस इज टू इंश्योर, दिस इज टू एम्फसाइज दोज प्रोनाउंसिएशंस इन डिटेल कि उन प्रोनाउंसिएशंस को हम समझ सकें, राइट? सो वी आर गोइंग टू डू दिस मद या अल्फ जी पट्टी।
मद अल्फ की जदवल, और ये हमने कल इसको रिवाइज किया था। आप सबने आ बा बा भा से लेकर वाह हा आ या तक खुद इसको पढ़ा था, और दिस इज एन इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड। आपने कल पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ाई थी। तो अब ये जो मश्क करेंगे वो मश्क जो है वो हम आपके साथ करेंगे, ठीक है। लेकिन हर लफ्ज के बाद आई विल कॉल अ नंबर, नाउ वी विल डू दिस। हर लफ्ज के बाद जो लफ्ज हम करेंगे, मैं एक नंबर कॉल करूंगा आपके टीआर नंबर्स में से, और जिसका नंबर कॉल करूं वो काइंडली अनम्यूट करे अपने आप को और बताए कि वो कौन सा लफ्ज हमने सीखा, राइट। यू हैव टू बी प्रॉम्प्ट, you have to be quick, you don't have to drag the scenario, you just have to listen to your number. For example, I'm saying number 27, number 30, number 1, number 8, number 7, after every word, और after every word दो numbers में पुकारे जा सकते हैं, number फलां, you need not to call your name, आप just आएंगे और बताएंगे कि कौन सा लफ्ज है। Is it clear? So this is the exercise of the chart of mad alif. मद या अल्फ जी जदवल या चार्ट जी मश्क, मद या अल्फ की मद या अलिफ की जदवल की मश्क। आर यू रेडी? तो tie up your laces and roll your sleeves, and we are going to do the first word. थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि अंडे का लफ्ज याद रखिएगा, थोड़ी देर के बाद इस्तेमाल होगा। Who will tell me? अब आप बताइए, who will tell me what do we call अंडे in jama, in plural? What do we call ande? Who will tell me? Quick. Who will tell me? Rabia Sahaba. Ana means अंडे। आना, शाबाश। तो जनाब पहला लफ्ज जो है इस जदवल का, इसकी मश्क का हम कर रहे हैं। कैन यू सी माय स्क्रीन? आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन। हम पहला लफ्ज करते हैं, अभी जो वर्ड ऑफ द डे में हम सीख के आए हैं प्लूरल में, वो है आना, ठीक है। आना, ये याद रखें कि जब हम मद की जदवल कर रहे हैं तो उसमें हम मद के ही आवाजों पर मुश्तमिल अल्फाज करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें सिर्फ जबर हो, जिसमें जेर हो, जिसमें पेश हो। मद की कर रहे हैं तो मद के ही अल्फाज होंगे। तो ये है आना, ठीक है। आना जैसे उर्दू में कहते हैं आना यानी आ जाना, ठीक है। तो सिंधी में एक्स को कहा जाता है प्लूरल में आना। आपको पता है सिंगुलर में क्या कहा जाता है? कौन बताएगा? Who will tell me? सिंगुलर में क्या मैंने बताया था, फिर मैंने प्लूरल बताया था, पहले सिंगुलर बताया था। Who will tell me? आसिफ इकबाल। आसिफ साहब क्या बताया था? आनो। गुड सर, थैंक यू आसिफ साहब जी। सिंगुलर ये था, ठीक है। ये भी आपने नोट किया वर्ड ऑफ द डे में, और मैंने ये अभी कहा था थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, किसको याद रखिएगा क्योंकि हम मश्क में जिक्र करेंगे। लेकिन चूंकि ये मद या अलिफ की मश्क है तो इसमें आ ये भी मद है, ना ये भी मश्क है। आना मीन्स अंडे, एग्स। इज इट क्लियर? आना। कैन आई लिसन दिस वर्ड फ्रॉम टीआर नंबर 3? TR number 3, TR number 13. Can I listen this word from TR number 13? Sir, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Are you TR number 13? Yes, say sir. It, say it, sir. It's say it. Ana. Ana means? Ande. Ana, ande, eggs. Thank you, Mr. 13. Thank you, sir. उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड बैल। एक तो हमने बैल पढ़ा था ढाल ढगो, एक हमने बैल पढ़ा था ढाल ढगो। एक और लफ्ज है सैनानियों में, अब ढगो तो उसमें नहीं आता ना मद के प्रोनाउंसिएशन में। एनीबडी फ्रॉम मदर टंग सिंधी, कैन एनीबडी टेल मी कि ढगो खे हिकिड़ो असां ॿियो लफ़्ज़ बि चवंदा आहियूं, या ख़ासि करे ढगे जे पुट खे? जी नदीम साहब। सर गाबा। गाबा, गुड, जबरदस्त। ये असल में लफ्ज है सिंगुलर में गाबो, गाफ अलिफ गा, गाफ अलिफ जबर गा, बे जबर वाव बो, गाबो मीन्स जो छोटा ऑक्स का जो बेटा होता है, जो बैल का बेटा होता है, जो बछड़ा होता है, उसको गाबो कहा जाता है, ठीक है, सिंगुलर को। लेकिन हम मद की जदवल कर रहे हैं तो उसकी जमा होगी, नीचे क्या लिखा है? बैल की जमा ऑक्सिस, गाबा, क्योंकि दोनों हमने ऐसे रखने हैं जिसमें अलिफ या जबर की या मद की की आवाज हो। गाफ अलिफ गा, जबर गाफ अलिफ जबर गा, बे अलिफ जबर बा, गा बा मीन्स बैल,
या ऑक्सेस. गाबा मीन्स बेल्स या ऑक्सेस. बेल, बेल का जो यूं समझे कि बेबी बेल है उसको कहा जाता है गाबो. इन्होंने तो गाबो है, ठीक है. उसका बेबी जो है उसको बोला जाता है गाबो, और जमा को बोला जाता है गाबा. टिया नंबर 5, प्लीज प्रोनाउंस दिस. हाउ इट इज प्रोनाउंस? गाबा. टिया नंबर 5. टिया नंबर 5. टिया नंबर 1. Yes, sir. It's called GABA. Your tier number 5. Okay. Yes, sir. I'm tier number 5. Thank you. This is GABA. GABA is बैल का बछड़ा जो कि जमा में, ठीक है. गाबा सिंधी में. गाबो इज प्लूरल, वो भी नोट कर लें. और गाबा इज इन सॉरी, गाबो इज इन सिंगुलर एंड गाबा इज इन प्लूरल. राइट. नेक्स्ट वर्ड राजा. सिंपल सा लफ्ज है, उर्दू में वैसे लिखा जाएगा बादशाह. बादशाह को राजा कहा जाता है, ठीक है. राजा. अब इसमें भी दोनों जबर के ही प्रोनाउंसिएशन है. रे जबर अलिफ रा, जीम जबर अलिफ जा, राजा. राजा. राइट. दिस इज राजा. राजा मीन्स बादशाह. राजा मीन्स बादशाह. राजा बिल्कुल सिंपल सा लफ्ज है और उसी तरह से इस्तेमाल होता है जैसे उर्दू में इस्तेमाल होता है राजा. नथिंग रॉकेट साइंस और नथिंग अ न्यू थिंग. राजा. टिया नंबर 1, कैन यू प्रोनाउंस इट? टिया नंबर 1, कैन यू प्रोनाउंस इट? टिया नंबर 10, कैन यू प्रोनाउंस इट? टिया नंबर 10, कैन यू प्रोनाउंस इट? Your Tia number 10, sir? Your Tia number 10, sir? Yes. Raja. Raja Yes, means sir. sir? Raja means sir? राज में बादशाह. बादशाह. राज का मालिक. The king. The king. राज का मालिक. राजा. राज जो मालिक. करने वाला. राज करने वाला. बहुत शुक्रिया. राज कहते हैं रियाया को. राज कहते हैं अवाम को. राजा यानी उस पर हुक्मरानी करने वाला. सिंधी में उन्होंने राज, राजधणीअ. तो हूँ सिंधी में इहो लफ़्ज़ राजा थींदो, वो सही लफ़्ज़ है, पर मुरवज जेको है सो राजा है. सो हमने पढ़ा आना मीन्स एक्स, गाबा मीन्स बैल के बछड़े, फिर राजा. राजा सिंगुलर, राइट. राजा वैसे प्लूरल में भी राजा इस्तेमाल होगा कि बहुत सारे राज्यों के राजा, बहुत सारी सल्तनतों के राजा. तो राजा प्लूरल सिंगुलर दोनों में एक ही होगा. उसके बाद है किसी चीज से बरी जिम्मा हो जाना, किसी चीज से फ्री हो जाना. पीपल फ्रॉम सिंधी मदर टंग को अहिड़ो लफ़्ज़ तव्हांखे सुझे थो सिंधीअ में जेको ज़बर सां अचे, जंहिंजा ॿई जेके आवाज़ आहिनि या टई आवाज़ ज़बर सां अचनि ऐं उनजी माना हुजे फ्री. फ्री, बरी ज़िमा. Anybody from mother tongue with Sindhi? Can anybody tell me? No. That word is आजा. जमा में सिंधी में सिंगुलर में आएगा आजो. मां हिन कम खां आजो थी वियुसि, मैं इस काम से फ्री हो गया, मैं इस काम से बरी जिम्मा हो गया. ये बात यानी मैंने ये काम करना था, मैंने 10 फाइलें चेक करनी थी और मैंने रात में कर डाली. हाणे मां हिन कम खां आजो थी वियुसि. अलिफ मदा जीम वाजो, ये है प्लूरल और सिंगुलर. सॉरी, इसका प्लूरल होगा आजा. नीचे जमा लिखा हुआ ना, फ्री प्लूरल. असा इन कम खां आजा है. असा मीन्स वी इन कम खां आजा है, फ्री हैं इस काम से. आजा, ठीक है. राजा का ही हम काफिया लफ्ज है आजा. आजा मीन्स उर्दू वाला आजा नहीं, आजा यानी आबीजा, वो वाला नहीं. आजा मीन्स आजा, फ्री. असा इन कम खां आजा थी वियासीं, असा इन कम खां फ्री थियासीं, असा इन कम खां बरी जिम्मा थियासीं. अब हमारे ऊपर जिम्मा नहीं है, असा इन कम खां आजा थी वियासीं. आजा. टिया नंबर 11, कैन यू प्रोनाउंस दिस? आजा. आजा. टिया नंबर 11. Yes, sir. जी, छा पढ़बो? Yes, sir. छा पढ़बो हुनखे? हिनखे छा पढ़बो? टिया नंबर 11. What can you what do you sorry? Sir, आजा. You are talking to somebody else? Are you talking to me? Sir, I'm talking to you. Okay. Sir, आजा ने के पढ़बो. Okay. हिंदी में. Thank you. मेहरबानी. आजा. उसके बाद है हमने एक शायद ये रिश्तों में अभी नहीं पढ़ा, ग्रैंड
पेरेंट्स के हवाले से, ग्रैंडफादर, लेकिन मैटरनल ग्रैंडफादर को सिंधी में कहा जाता है नानो, नून अलिफ, नून जबर अलिफ ना, नून जबर बा नो, नानो, यानी नाना, जिसको उर्दू में नाना बोला जाता है, सिंधी में बोला जाता है नानो। लेकिन बहुत सारे नाना हो, दो नवासों के दो अलग अलग नाना हो तो कहेंगे नाना, ठीक है। नाना जो उर्दू में सिंगुलर के लिए कहा जाता है, सिंधी में वो प्लूरल के लिए कहा जाता है। सिंधी में सिंगुलर है नानो, मीन्स मैटरनल ग्रैंडफादर, लेकिन सिंगुलर के लिए सिंधी में बहुत सारे नाने हो, बहुत सारे नाना हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज नाना, राइट। नाना इज जमा ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर का जो जमा है वो है नाना, अगर सिंगुलर होगा तो वो होगा नानो, ठीक है। ये नानो सिंगुलर है और जमा में होगा नाना, तो हम मद की जदवल कर रहे हैं तो ये लफ्ज होगा नाना, राइट। दिस विल बी नाना। कैन आई hear from TR number 4? TR number 4, can you pronounce this? Nana. Nana, thank you. TR number 26, can I hear from TR number 26? TR number 26. Okay, this is Nana. TR number 4, tell me, what does Nana mean? Nana. Sir, jama nana ki. Nana ki jama, thank you. We are about to be disconnected from the session. I'll request you for a few slides to reconnect. Jaise disconnect ho, as soon as we are disconnected, reconnect for the last portion of this class for not more than 7 to 10 minutes, and we will be completing a few slides. This is Nana. उससे पहले हमने पढ़ा गाबा, उससे पहले पढ़ा, उसके बाद पढ़ा राजा, फिर हमने पढ़ा आजा यानी बरी ज़िमा, फ्री। So we are continuing from Nana. हमने last word किया था वो था Nana. Nana means Nana की जमा. Hope you can listen to my voice. Okay. Then next word is मामू. हमने मामू पता नहीं रिश्तों में अभी किया है या नहीं किया, फोर्थ कमिंग में है। तो मामू को सिंधी में कहा जाता है मामो, सिंगुलर को कहा जाता है मामो। मीम अलिफ जबर मा, मीम वाव जबर मो, मामो मीन्स वन मामा, एक मामा को कहा जाता है, मैटरनल अंकल को कहा जाता है मामो। लेकिन बहुत सारे मामू हो, दो या दो से ज्यादा, उसको बोला जाता है मामा, जो कि उर्दू में सिंगुलर होता है। मामा या मामू जो है वो सिंगुलर होता है, लेकिन सिंधी में प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है मामा। मामा मीन्स बहुत सारे मामू, उठ मामा गोगड़ू, मामा, ठीक है, मामा। Mama is the plural of mamu, jama of mamu, the maternal uncles, jama of mamu. Can I hear from TR number 6 how to pronounce it? TR number 6, how to pronounce it? Mama. Mama. It's mama. Mama, what does mama mean? Means maternal uncles. Maternal uncles in plural. Thank you. Next is नखरे। नखरे के लिए यानी attitudes. सिंधी में को लफ्ज़ सुझे थो तव्हांखे? Anybody with mother tongue सिंधी? अहिड़ो को लफ्ज़ जेको मद जी जदवल में अचे ऐं नखरनि जो जी ट्रांसलेशन हुजे? Anybody? माणा सर। माणा, शाबाश। केर आहे? नालो ॿुधायो। फजीला सर। फजीला, थैंक यू। माणा, मीम जबर अलिफ मा णून, ये आखिरी जो सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट हर्फ है, णून जबर अलिफ णा, माणा मीन्स नखरे, ठीक है। खासतौर पर शायरी में जब महबूब के नखरों का जिक्र होता है, नाजो अंदाज का जिक्र होता है, अदाओं का जिक्र होता है, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है माणा। ॾाढा नाज़ सजण ॾेखारी थो, मूंखे माणा करे तूं मारी थो, माणा। माणा मीन्स माणो, असल में ये माणो सिंगुलर है, माणो मीन्स नखरा, एक नखरा। लेकिन हम कर रहे हैं जबर की मद की जदवल, तो उसमें इसका प्लूरल आएगा माणा। अल्फाज ऐसे चुनते हैं कि जो उस जदवल के साथ फिक्स हों, ताकि हम पता चल सके उस आवाज का। अब इसमें दो फायदे हैं कि नए अल्फाज भी आप सीखते हैं और उनकी आवाजें भी सीखते हैं, और उन्हीं आवाजों से मुताल्लिक अल्फाज होते हैं जो जदवल, जो एक्सरसाइज हम कर रहे होते हैं। माणा, मीम अलिफ जबर मा, णूण, दिस इज णूण, अलिफ जबर णा, माणा मीन्स नखरे
यानी नाजो अंदाज इन जमा, नाजो अंदाज इन जमा, लेकिन इन पॉजिटिव सेंस, नॉट इन नेगेटिव सेंस. मोहम्मद इमरान जकरिया साहब, यू हैव अ क्वेश्चन. सर वो शेर एक पढ़ रहे थे, मेरा नाज सजन, तो आगे क्या है वो सर? डाढ़ा थोड़ा नाज देर मुझसे सजन, रह डाढ़ा नाज सजन देखा. डाढ़ा मीन्स बहुत सारे या बहुत शदीद. डाढ़ा नाज सजन ॾेखारी थो, तुम नाजो अंदाज जो है वो दिखाते हो. मुखे माणा करे तुम्हारी थो, यानी अपने नाजो अंदाज से, अपनी अदाओं से तुम मुझे मारते हो, तुम मुझे कत्ल करते हो. तो ये मशहूर एक सॉन्ग है, क्लासिकल सॉन्ग है सिंधी का, बल्कि फोक स्टाइल का सॉन्ग है. तो वो मेरे जहन में याद आ गया. माणा, माणा मीन्स नाजो अंदाज in positive sense. So TR number 9, TR number 7, can you pronounce it? TR number 7, mana. TR number 7, can you pronounce it? क्या TR number 7 हमारे साथ है? Is TR number 7 with us? अगर नहीं तो TR number 1, can I hear from TR number 1? TR number 7 नहीं है. जी सर. TR number 1, how will you pronounce it? जी सर, Faisal here. Don't tell me your name, just Mauna. when I'm quoting the TR number, don't take your name. It is strictly forbidden to take your name whenever I am quoting your TR number. Right? When you are called through your TR number, just appear through your TR number. When you are asking a question, then ask it through your name. So TR number 1 is Mana. Thank you very much. बहुत शुक्रिया जी. TR number 11, TR number 12, sorry, 11 को हमने शामिल किया. TR number 12. TR number 12, can I hear from you? What is this? Mana sir. Mana means attitudes. Attitudes. नखरे. बहुत शुक्रिया जी. अच्छा, इसी लफ्ज को एक और लफ्ज भी है. Who is there? Who is there? Any questions? Okay. The people with Sindhi as their first language. एक और लफ्ज है, हिकिड़ो ॿियो बि लफ्ज़ आहे जेको हुन जो साइनोनिम आहे, उहो बि असांजे मद या अलिफ जे चार्ट में ईंदो. बिल्कुलु हुन जो साइनोनिम माणा जो. Anybody? कंहिं कोन थो चए यार. अंगल लफ्ज़ ॿुधो आहे कंहिं? तव्हां मुंहिंजा कंहिं अंगल लफ्ज़ ॿुधो आहे? अंगल मान करना, वो कहते हैं लाड करना जिसको बोलता है. नखरे से भी ज्यादा जो है वो लफ्ज आएगा इसमें, लाड करना. और वो लाड अगर जमा में आ जाए तो उसके लिए एक सिंधी में लफ्ज होता है आरा. असल में ये लफ्ज है आरो. अंगल आरो, अंगल के साथ इस्तेमाल होता है. अंगल का मतलब भी है लाड करना. खासतौर पर छोटे बच्चे जब लाड करते हैं या कोई चीज, किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं लेकिन वो उस पर इंसिस्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कहते हैं कि मेरे बच्चे ने मुझसे अंगल किया. सिंधी में इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. ये खिलौना मैंने इसलिए दिलवाया कि उसने ये अंगल किया. उसका अल्टीमेट जो मीनिंग है वो नखरा ही है, लेकिन नखरा किसी मान के साथ, किसी लाड के साथ. तो अंगल के साथ आरो इस्तेमाल होता है. अलिफ मद आ, रे वाव रो आरो. लेकिन चूंकि हम मद की जदवल कर रहे हैं तो उसकी जमा, इसका प्लूरल होगा आरा. यानी मैं अपने बच्चों के, मां पंहिंजे ॿारनि जा आरा खणा थो यानी लाड उठाना. अंगल खणा थो मीन्स अंगल उठाना या नाज उठाना, यानी वो एक प्यार की निशानी होती है. मैंने आपको मिसाल दे दी कि खासतौर पर कोई बच्चा, कोई छोटा भाई, कोई छोटी बहन, उन्होंने अगर कोई मान से कोई फरमाइश कर दी आपके साथ, तो उसको कहते हैं कि इसका अंगल मैंने पूरा किया. तो अंगल के साथ ये लफ्ज आता है अंगल आरो. आरो मीन्स जो कोई मान या लाड के साथ कोई चीज कहे, उसकी जमा होती है आरा. तो अल्टरनेट और अल्टीमेट इसका जो तर्जुमा है वो नखरे ही होगा. लेकिन माणा और नखरे में ये फर्क है कि माणा महबूब के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आरा जो है वो अपने से छोटे के लिए इस्तेमाल होता है. महबूब के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि मैंने अपने महबूब के आरे उठाए, या मैंने अपने महबूब के नखरे उठाए, या अंगल उठाए, ठीक है. लेकिन खास तौर पर आपसे छोटा हो, आपका बच्चा हो, छोटी बहन हो, छोटा भाई, उसके लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है. तो मुंह जा अंगल आरा खया.
या कभी कभार बेजार होकर सबसे बड़े घर के होते हैं, वो कहते हैं कि तू सजो नहीं पंहिंजे ॿारनि जा अंगल तो सही, तो उन्हें पढ़ाई पे ध्यान दे। या वो कहते हैं कि तुम सारा दिन उनके लाड उठाते रहते हो, कभी तुम उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान दे दिया करो, क्योंकि तुमने उनका जो है वो उनकी आदतें खराब कर दी हैं। तो बेजारी में भी कहा जाता है, लेकिन है एक प्यार भरा जेस्चर जिसको अंगल आरो कहा जाता है। अंगल और आरो, ठीक है, अंगल आरो एक साथ इस्तेमाल होता है, तो उसकी जमा है आरा, जो हमारे मत की जदवल में इस्तेमाल होगा। आरा मीन्स नखरों की जमा या मान या लाड की जमा। इज इट क्लियर? Now, tell me, TR number 15. Can you pronounce it? Ara. TR number 15. जी सर। जी। आरा। आरा। आरा means? Means नखरे। नखरे। नखरे, लाड। जी। Thank you. Rabia Saab, you have a question? Yes, sir. जी। Sir, angal means? अंगल means आरो, वही सेम मीनिंग है, यानी किसी बच्चे का नहीं, लाड करना, लाड करना। अंगल खणन मीन्स लाड उठाना। अंगल कर्ण, ये दो अलग अलग चीजें। अंगल कर्ण जो है, अंगल कर्ण मीन्स लाड करना, यानी छोटा बच्चा लाड कर रहा है, और लाड उठाना जो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको कहते हैं लाड उठाना, यानी अंगल खणन, सिंधी में बोलते हैं खणन, अंगल खणन। अंगल कर्ण मीन्स लाड करना और अंगल खणन मीन्स लाड उठाना। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अंगल का मतलब है लाड या नखरा। क्लियर? सर अंगल आरो का मतलब है ना लाड करना। अंगल जो एक पूरा लफ्ज है उसका मायने क्या है? अंगल का मतलब भी लाड है, आरो का मतलब भी लाड है। अंगल आरो एक साथ इस्तेमाल होते हैं लाड के लिए, जमा के तौर पर। अलग अलग इस्तेमाल होंगे तो भी इनकी मीनिंग यही है। आरो की मीनिंग भी, ये जो आरो हमने इसका सिंगुलर पढ़ा था, उसकी मीनिंग भी अंगल ही है। अंगल की मीनिंग है लाड, आरो की मीनिंग है लाड। एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो भी लाड के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है? थैंक यू सर। क्लियर। आरा, ठीक है, आरा। कैन आई हियर फ्रॉम TR number 17? TR number 17, can you pronounce it? Ara. Yes, sir. Ara. Ara. What does it mean, sir? नखरे, एटीट्यूड्स। ये तो आप देख के बता रहे हैं ना। वैसे मैंने क्या बताया, एक और लफ्ज भी बताया, आरा पर्टिकुलरली एटीट्यूड किसकी जानिब से, कुछ याद है? चले जनाब आगे बढ़ते हैं। वालिद, वालिद की जमा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वालिद, वालिद को हम वालिद के लिए एक नाम पुकारते हैं, ठीक है? उर्दू में पुकारते हैं बाबा, सिंधी में उसको कहते हैं बाबो, ठीक है? लेकिन जब बहुत सारे वालिदैन, 3 बच्चे खड़े हैं, उनके वालिदैन के लिए जमा में बाबा इस्तेमाल किया जाता है। या हम वालिद को जब पुकारते हैं तो हम कहते हैं बाबा। जब हम एज थर्ड पर्सन का जिक्र करेंगे तो हम कहेंगे मुझे बाबो ॾाढो भलो आहे, मुझे बाबू ॾाढो सुठो आहे, मुझे बाबू अचे थो, मुझे बाबू सुबह जो कम ते वेंदो आहे। तो जब हम एज थर्ड पर्सन जिक्र करेंगे तो बाबू कहेंगे। जब हम उनको पुकारेंगे कि ए मेरे बाबा, ओ माय फादर, तो कहेंगे बाबा। बाबा हिकु ॻाल्हि ॿुधो, बाबा मूंखे पैसा खपनि, बाबा मूंखे स्कूल वञिणो आहे, बाबा मूंखे टूर ते वञिणो आहे। तो वेन एवर यू आर टॉकिंग टू हिम यू विल से बाबा। या जबा में जब आप कहेंगे कि सभिनी शागिर्दनि जा बाबा सुठनि उहदनि ते फाइज आहिनि, मीन्स तमाम शागिर्दों के जो वालिदैन हैं, वालिदैन से मुराद यानी वालिद का जिक्र और फादर, तो उसमें फादर्स के तौर पर बाबा इस्तेमाल होगा। 2 तरीकों से इस्तेमाल होगा। जब आप मुखातिब होंगे तो कहेंगे बाबा मेरी बात सुने, बाबा मुझे गाल बुधो, तो भी बाबा आएगा। और जब एज थर्ड पर्सन सिंगुलर में जिक्र आएगा तो कहेंगे बाबो। तो जो बाबो छा कंदो आहे, आपके बाबा क्या करते हैं। लेकिन अगर 2 बच्चों से पूछ रहा हूं तहां जा बाबा छा कंदा, तहां जा बाबा छा कंदा, तो कहेंगे बाबा। तो 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है। बाबा की मीनिंग वही है जो उर्दू में है बाबा, लेकिन इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क है कि प्लूरल और सिंगुलर का फर्क है, वैसे सेम ही है। मुखातिब जब होंगे उर्दू में भी तो आप कहेंगे बाबा, आप मेरी बात सुने, सिंधी में चंदा बाबा तो मुझे क्या दो, राइट? तो बाबा इज फादर, और प्लूरल में भी इस्तेमाल होता है और हर्फ निदा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है बाबा, और उसका मतलब और मफहूम आप जानते हैं, बाबा, राइट? दिस इज बाबा मीन्स फादर्स, राइट? Who will tell me? TR number 21. Can you pronounce it? Baba. TR number 21. TR number 21. 21 भी नहीं है हमारे साथ। TR number 23. TR number 23.
TR number 25. TR number 25. TR number 9. जी सर. Ji, what is this? बाबा. Baba, what does it mean? Baba. सर बाबो खे चवंदा आहिनि. बाबो खे चवंदा आहिनि बाबा. Thank you. बाबा. Thank you. अच्छा चचा को आपको आपने पढ़ा था, चचा को सिंधी में क्या कहते हैं? Who will tell me? चचा को सिंधी में क्या बोलते हैं? सिंगुलर. सिंगल चचा को सिंधी में क्या बोलते हैं? अस्सलाम सर. वालेकुम सलाम मैम. नाम बताइए. शादी सिराज. शादी साहबा क्या कहते हैं? सर चाचो. चाचो. शाबाश. थैंक यू. सिंगल को बोलते हैं चाचो. ठीक है, चाचो इस तरह से लिखा जाएगा. चाचो. चे अलिफ जबर चा, चे वाव जबर चो, चाचो मीन्स सिंगल चचा. ओके, इसी की जमा होगी चाचा. अगेन बाबा वाला केस अप्लाई होगा. जब आप चाचा से मुखातिब होते हैं तो आप कहेंगे चाचा साईं या चाचा मुझे गाल बुधो. ठीक है, और जमा में भी आप तीनों के चाचा क्या करते हैं? आप तीनों के चाचा क्या करते हैं? तो सिंध में कहेंगे ता टिनी जा चाचा छा करना है, या मुझा ट्रे चाचा है, मेरे 3 चचा हैं. तो वहां पर भी चाचा इस्तेमाल होगा. सिंगुलर में एज थर्ड पर्सन जिक्र करेंगे कि ही मुझो चाचो आए, वहां पर चाचो आएगा. चाचो मीन्स चाचो चचा. लेकिन जब मुखातिब होंगे बाबा की तरह तो भी चाचा कहेंगे, और जब कभी जमा का जिक्र करेंगे तो भी चाचा ही कहेंगे. राइट. TR number 1, can you pronounce it? TR number 1, can you pronounce it? TR number 19, can you pronounce it? TR number 20, can you pronounce it? 1 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है. TR number, who is this? TR number 20 सही. 20. हाँ, छापड़ बोने के चाचा सही. चाचा. चाचा means चचा जमा में. Thank you so much. TR number 20. Moving forward, again रिश्तों में दादा. दादा को सिंधी में क्या कहेंगे? Will tell me. A person from not having Sindhi as their first language. दादा को सिंधी में क्या बोलेंगे? साहब क्या बोलेंगे? दादा. दादा तो नहीं बोलेंगे. दादा. नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं. दादा कहाँ से बोलेंगे? दादा तो अभी पढ़ाने वाला हूँ. आपने एक अंदाजा लगाया कि who was there? There was a lady voice. I could listen along with Karimik sir. Who was? Shadi Sahaba, you want to add something or you want to respond to it? सर डाडो. मैं समझा पहले शादी साहब की आवाज में तब्दील क्यों हो गई. आप बच्चे की आवाज सुनी तो मैंने कहा तब्दील हो गई इतनी जल्दी में. डाडो बोलेंगे. डाडो मीन्स दादा. दादा. चलिए, बहुत शुक्रिया. डाडो मैंने पढ़ा था. डाडो केरमिक साहब, दिस वाज डाडो नॉट दादा. डाडो मीन्स ग्रैंडफादर, और जब जमा करेंगे तो हो जाएगा दादा. बहुत सारे ग्रैंडफादर्स. दादा. अगेन वही केस, बाबा से जब आप मुखातिब होते हैं, वैसे तो दादा को बाबा ही कहते हैं या अब्बा कहते हैं, लेकिन अगर आप उनसे उनके रिश्ते के हैसियत से मुखातिब होना चाहें तो आप कहेंगे दादा साईं मुझे गाल दो, या खत में लिखेंगे तो मुखातिब होंगे प्यारा दादा साईं या काबिल एहतराम दादा साईं. तो वहां पर भी दादा इस्तेमाल होगा, और जमा में भी दादा ही इस्तेमाल होगा कि तव्हां सभिनी जा दादा, तव्हां सभिनी जा दादा हयात आहिनि. अगर सवाल करें तो वहां पर भी प्लूरल में भी दादा इस्तेमाल होगा. प्लूरल में भी दादा ही इस्तेमाल होगा. TR number 9, can you pronounce it? दादा, can you pronounce it? जी सर. दादा. दादा. TR number 14, can you pronounce it? TR number 14, can you pronounce it? Dada. Dada. Try to say it like dada. Dada. दादा. दादा. दादा को दादा बनने में कितने दिन लगते हैं? I'll wait for it. दादा. 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 Thank you, sir. Thank you. TR number 1. What is this? TR number 1. जी sir. जी. What is this? दादा. Dada. Dada means? Dada means? Dada means? चाचे. मतलब दादा. दादा. लेकिन दादा सिंगुलर प्लूरल कैसे? सर इट्स प्लूरल. प्लूरल. बहुत सारे दद्दू हों तो उसको कहा जाएगा दादा. धनिया.
Coriander. What do we call dhania in Sindhi? Dhania. Anybody from Urdu as a mother tongue? Can anybody guess? या कहीं से सुनाओ धनिया क्या बोलते हैं? मैंने उसकी शक्ल भी बना ली. Coriander. What do we call coriander? न तां न ॿुधायो. साईं तां धाणा न कढो मुंहिंजा. उन्हनि खे ॿुधाइण ॾियो जेके माना जिन जो मां आइडिया थो वठणु चाहियां. Do they know? Anybody with not having Sindhi as their mother tongue? Any of you? Sir, Karim Boss. जी करीम साहब तव्हां किथे ईंदो तव्हां टंडे मोहन खान में सॼो ॾींहुं धाणा वठंदा हूंदव. थूम धाणा लौंग पोट थालीअ में. ठीक है. दिस इज धाणा. धनिया को सिंधी में बोला जाता है धाणा. एक और मेहरबान ने बताया था. इन को पहिरीं कंहिं ॿुधायो जिनखे मूं मना कयो त पहिरीं उर्दू मदर टंग वारनि खे ॿुधाइण ॾियो. हू वाज देयर दैट पर्सन करीम साहब को पहिरीं रिजवान साहब फ्रॉम लाड़काणो. जी साईं. जी थैंक यू रिजवान साहब, बड़ी मेहरबानी. अच्छा जी धाणा. दिस इज धाणा. धनिया को सिंधी में बोलते हैं धाणा. धाल या धे अलिफ जबर धा णूण अलिफ जबर णा धाणा. धाणा इज धनिया. धाणा इज धनिया. धनिया को बोलते हैं धाणा. धनिया को बोलते हैं धाणा. ठीक है. धाणा. धनिया को बोलते हैं धाणा. टिया नंबर 5 कैन यू प्रोनाउंस इट? टिया नंबर 5 कैन यू प्रोनाउंस इट? Dhana. Yes, sir. It's dhana. Dhana. Tia number 6. Can you pronounce it? Tia number 5. What does it mean? Dhana means? Sir, धनिया धनिया को बोलते हैं. Coriander को बोलते हैं. Tia number 6. Tia number 6 is not there. Okay. Yes, sir. जी. Tia number 6. What? How do you pronounce it? Dhana. Dhana means? धाना मीन्स धनिया. धनिया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अच्छा जी काजू. काजू को सिंधी में क्या बोलते हैं? Who will tell me? कोई ॿुधाए? Having Sindhi their mother tongue or Sindhi their second language, no problem. खाजो है खाजा. खाजा. खे ये सिंधी वाली खे जबर अलिफ खा ये जिभ टंग ये जिभ जबर अलिफ खाजा. खाजो बोलते हैं इनमें काजू में से एक को. और खाजा जाहिर है कि एक तो नहीं खाते, बहुत सारे खाते हैं, एक हैंडफुल खाते हैं. खाजा खे अलिफ खा ये अलिफ जा. खाजा. काजू. कैश्यू नट्स जिसको बोला जाता है कैश्यू नट्स. खाजा. काजू इज कॉल्ड खाजा इन सिंधी. खाजा खाई ने. खाजा राइट. दिस इज खाजा. ओके क्लियर. टिया नंबर 2 कैन यू प्रोनाउंस इट? खाजा. यस सर. खाजा. नहीं खाजा नहीं पूरा नहीं. खाजा. जा. खाजा कहेंगे तो वो पूरा खा जाएगा. वो कहेगा उन्होंने खुद ही बोला है मुझे टिया नंबर 2 ने कि खाजा पूरा खाजा. आपको पता है कितने महंगे हैं. तो उसको बोलेंगे खाजा. खाजा बोले. खाजा वो खा जाएगा पूरा. Tia number 22. Thank you. Tia number 2. Tia number 22. Tia number 22. Khaja. How do we pronounce khaja? Tia number 23. Tia number 23. Tia number 4. How would you pronounce khaja? Tia number 4. खाजा. पूरा खाजा. ये भी खा ही जाएगा. खाजा. This is खाजा. ठीक है. खाजा. ओके. उसके बाद है रोशनदान. रोजन जो अक्सर दरवाजे के लेवल से ऊपर होता है. रोशनदान उसको बोलते हैं सिंधी में जारो. उसको सिंधी में बोलते हैं जारो. जीम अलिफ जबर जा रे बा जबर रो. और जमा में बोलते हैं जारा. जीम अलिफ जबर जा रे अलिफ जबर रा जारा. रोजन जिसको बोलते हैं. रोजन जिंदा यानी जेल की वो खिड़की जो रोशनदान के तौर पर ऊंची लगाई जाती है जहां रोशनी आती है. रोशनदान होता है. उसको बोलते हैं जारो. ठीक है. जारो सिंगुलर में और प्लूरल में बोलते हैं जारा. ठीक है. जारा मीन्स रोशनदान. आई बात समझ में.
Jara. TR number 7, can you pronounce it? TR number 7, can you pronounce it? TR number 9, can you pronounce it? Jara. जी सर Ji. जारा Jara, thank you. TR number 12, can you pronounce it? TR number 12, can you pronounce it? TR number 1, can you pronounce it? जी सर Ji. जारा Jara means वेंटिलेटर कैसे बोलते हैं? ventilator window, जहां से ventilation Jara, लेकिन इन प्लूरल, ठीक है। थोड़ा सा माइंड को प्रेजेंट रखें, ठीक है। उसके बाद बारी, अब उसके बाद मेरी बारी है और उसके बाद तुम्हारी बारी है, तो इसको कहते हैं, उस बारी को कहते हैं सिंधी में वारो। वारो अचोड़े बारो रांद जो वारो मीन्स इट्स बारी। अब टर्न जो है बारी, बारी यानी टर्न। वाव अलिफ जबर वा, रे वाव पेशो रो, वारो। लेकिन यहाँ पर हम मत की जदवल कर रहे हैं तो ये होगा वारा, प्लूरल में बारियां यानी जमा टर्न्स, प्लूरल टर्न्स वारा। हाणे कंहिंजा वारा, वारा नियारा थियण। वारो, वारो मीन्स टर्न, वारा मीन्स टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स। वारा मीन्स टर्न्स। TR number 24, can you pronounce it? TR number 24, can you pronounce it? वारा, वारा बिल्कुल आसान है, वारे नियारे हो जाना। TR number 24. TR number 18, can you pronounce it? TR number 18. TR number 23, can you pronounce it? TR number 23, can you pronounce it? इनके नोट करते जाएं, जो जिनकी तरफ से आवाज नहीं आ रही, जितनी बार नहीं आ रही, ये नोट करते जाएं। 23. 23 is not there. TR number 6, can you pronounce it? Vara. 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 Varo ki jama. The plural of varo, bariya. The plural of varo, turns. TR number 5, can you pronounce it? TR number 5, can you pronounce it? TR number 4, can you pronounce it? TR number 4. Vara. Vara means? Vara means? बारियां। Bariya means? टर्न्स। टर्न्स। इसको जुमले में इस्तेमाल करें, बारियां को फर्ज करें, बारी को इस्तेमाल करें उर्दू में इस्तेमाल करें बारी, बारी टर्न को। तुंजी वारो तो उर्दू में करें, डू इट इन उर्दू। वारो उर्दू, बारी को आपकी करें। बारी आ चुकी है। आपकी बारी आ चुकी है। उसको सिंधी में क्या बोलेंगे? वारो इज मैस्कुलाइन। व्हाट डू वी कॉल इट इन उर्दू? हाउ डू वी इन सिंधी? सॉरी, तुंजी वारी अच्छी थी। इट्स अ मैस्कुलाइन। सिंधी में वारो इज अ तुंजो मैस्कुलाइन। वारो। हाँ, तुंजो वारो। गुड। अच्छी तो अचे थो या अची वयो आहे। अची वयो आहे मीन्स आ गया है, तुम्हारी बारी आ गई है, राइट। उसके बाद है धारा। सिंधी में बहाव को कहा जाता है धारा। धे धाल धोबी, जबर अलिफ धा, रे जबर अलिफ धारा। धाराऊं, जिसका प्लूरल होगा धाराऊं, ठीक है। एक धारा कहते हैं बहाव को, फ्लो को बोला जाता है बहाव, नॉट जमा। दिस इज सिंगुलर। धारा मीन्स बहाव, दिस इज सिंगुलर, ठीक है। और धाराओं मीन्स बहुत सारे बहाव या बहुत सारे फ्लो। सो फ्लो इन सिंगुलर इज धारा। अमृत धारा, सिंधु धारा मीन्स दरियाए सिंध का बहाव, द फ्लो ऑफ इंडस रिवर। धारा इज फ्लो, राइट। धारा इज फ्लो। और इसका प्लूरल जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका प्लूरल होगा धाराऊं। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें बहुत सारे फ्लो तो ये होगा धाराऊं। तो धारा इज बहाव, धारा इज बहाव। TR number 2, can you pronounce it? Dhara. Yes sir, dhara. TR number 11, can you pronounce it? Dhara. TR number 11. TR number 11, can you pronounce it? TR number 11, hurry up. If not, then we are moving towards, उर्दू में कहते हैं बाजे।
ठीक है, यहाँ पर ट्रम्पेट बने भी हुए हैं, बाजे। वैसे तो बजने वाली हर चीज जो है जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाए तो वो बाजा ही कहलाता है, लेकिन उर्फ आम में हम समझते हैं कि शायद बैंड के साथ, जो शादी वाले बैंड के साथ जो ट्रम्पेट और जो शहनाई वगैरह बजते हैं उसको बाजा कहा जाता है। बाजा मीन्स बजने वाली कोई भी चीज, एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसको सिंधी में जबा में बोलते हैं बाजा, सिंधी में सिंगुलर में बोलते हैं बाजो, बे अलिफ जबर बा, जीम जबर वाव जो, और उसकी जमा होगी बाजा। मीन्स बहुत सारे बाजे, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे बाजे, इलाई सारा बाजा। TR number 11, can you pronounce it? TR number 12, can you pronounce it? Baja. TR number 14, can you pronounce it? TR number 16, can you pronounce Baja. it? Ji, who is this? TR number? TR number? TR number 14. जी सर, इसको pronounce कीजिए। बाजा means? बाजा means? ये जमा है सर, ये किसकी? बाजे की। बाजे की जमा है बाजा, राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बाजे, बाजे उर्दू में बोला जाता है और सिंधी में उसको बाजा बोला जाता है। बाजा मीन्स बहुत सारे बाजे। उसके बाद कमिंग टू द सेकंड लास्ट वर्ड, मैसन जो है, मिस्त्री जो कंस्ट्रक्शन करता है, उसको सिंधी में बोला जाता है राजो। रे अलिफ राज, रे अलिफ जबर रा, जे वाव जबर जो, राजो मीन्स मैसन। नीचे उसकी शक्ल बनी हुई है, मैसन। दिस इज मैसन हु कंस्ट्रक्ट अ हाउस, राजो, और उसकी जमा कहा जाता है राजा। मैसन्स मिस्त्री, जमा में बोला जाता है राजा। राजा मीन्स मिस्त्री, जमा में। TR number 4, can you pronounce it? TR number 4. TR number 2, can you pronounce it? Raza. Yes sir, Raza. Raza means? मिस्त्री, मेसन। मिस्त्री, मैसन्स। ओके, जहन में आ गया मैसन किसको कहते हैं? जी सर। कंस्ट्रक्शन करते हुए देखा है कभी मैसन को? जी। जिस तरह से ईंटें लगा रहे हैं लाइन में, आपने देखा है मैसन को सामने काम करते हुए कभी? जी सर। That mystery is called Razo in Sindhi and Raza in plural, right? And the last word of today is khara. इस किस्म की टोकरी जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इसको सिंधी में बोला जाता है, सिंगुलर में इसको बोला जाता है खारो। ये देखें, सिंधी में इसको बोला जाता है खारो, ये खारो। दिस इज अ बास्केट, अ लार्ज ओपन बास्केट मेड ऑफ ट्विंग्स इन प्लूरल। वैसे तो इसको टोकरी बोला जाएगा, पर पर्टिकुलरली इस मटेरियल से बनी हुई जो टोकरी है, इसको, ये कभी कभार इससे ज्यादा गहरी भी होती है और इस तरह की भी होती है, तो उसको बोला जाता है खारो। खे अलिफ जबर खा, रे वाव जबर खारो, प्लूरल में, ओ सॉरी सिंगुलर, इसका प्लूरल होगा खारा। मीन्स बहुत सारी टोकरियां, इस किस्म की बहुत सारी टोकरियां, पर्टिकुलरली एक खास दरख्त की लकड़ी से बनती है, छोटी छोटी उसकी तीलियां होती हैं, उससे बनती है, और इसको खारो बोलते हैं। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टोकरी जो है, इसको खारो बोलते हैं। तो ये खारा मीन्स बहुत सारी ऐसी टोकरियां, लार्ज ओपन बास्केट्स मेड ऑफ ट्विंग्स इन प्लूरल इज कॉल्ड खारा। दिस इज कॉल्ड खारा। TR number 1, can you pronounce it? TR number 1, can you pronounce it? TR number 9, can you pronounce it? जी सर, खारा। खारा means? खारा means? टोकरियां। टोकरियां। Okay. TR number 10? टोकरियों। TR number 10, sir, can you pronounce it? खारा। खारा, सर खारा। खारा means? खारा टोकरियां। 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 राइट जी। और उसको भी खारा बोला जाता है, जो कि अपने अपने जायके में तुर्श होता है ना, खारे पापे। खारे पापे, उसको भी उनके सिंधी में जो है खारा पापा, ठीक है, वो जो चाय के साथ खाए जाते हैं, खारे खारे पापे। तो पानी खारा आ रहा है, उसको बोलते हैं सिंधी में खारो। थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक यू वेरी मच। पानी खारा आ रहा है, उर्दू में खारा, सिंधी में जो है वो उसको खारो बोला जाता है। यानी जिसका जायका तुर्श हो उसको भी जमा में खारा बोला जाएगा। कोई भी चीज जमा में हो और खारे उसका जायका तुर्श हो तो उसको बोला जाएगा खारा। तो हमने आज पढ़ा खारा यानी टोकरियां, लार्ज ओपन बास्केट्स मेड ऑफ ट्विंग्स एंड प्लूरल। TR number 19, can you pronounce this? TR number 19, can you pronounce this? This is khara.
means टोकरियां, large open baskets made of twigs in plural. Raza means mistri, masons in plural, masons in plural, raza, और उसका singular होगा razo. Baja, बहुत सारे बाजे, musical instruments in plural, that is called baja. The plural of bajo, bajo is one बजने वाला instrument, और baja means बहुत सारे बजने वाले instruments, baja. Dhara is बहाव, flow, flow is called dhara, जिसका plural होगा धाराओं. Vara is बारियां, turns, that is called vara. Jara is रोशनदान, जमा में, ventilator, windows, that is in plural, और single होगा jaro. उसके बाद खाजा इस काजू, जमा में, और जाहिर है कि इसका एक नट होगा तो बोलेंगे खाजो, लेकिन जमा में उम्मन जमा में ही इस्तेमाल होता है. खाजा केतरे जा किलो आहिन, केतरे जा सेर आहिन, तो खाजा. एक मुहावरा भी है सिंधी में, अंधेर नगरी चरबट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा. मीन्स जब अंधेर नगरी होती है और बेवकूफ राजा होता है, जिस तरह से इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक क्लाउन एंड एक्सपेक्ट सर्कस, तो सिंधी में बोला जाता है. तो उसकी हुकूमत में ये होता है कि एक टके का एक सेर होता है सब्जी का, और एक टके का एक सेर होता है काजू का. इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज अपने रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक नहीं होती. इसका आसान मफहूम ये है. उसके बाद धाना, धनिया को बोला जाता है, कोरिएंडर को. डाडा, दादा की जमा, या जब उनसे मुखातिब हो तो डाडा साईं बोलेंगे दादा को. चाचा, चचा की जमा, या उनसे जब मुखातिब होंगे तो चाचा साईं बोलेंगे, या मेरे प्यारे चचा, मुझा प्यारा चाचा बोलेंगे. बाबा, जब बाबा से मुखातिब होंगे तो भी बाबा बोलेंगे, या एज थर्ड पर्सन जमा में जिक्र करेंगे तो इन दोनों के बाबा बहुत अच्छे इंसान है. इन्हनि ॿिन्ही जा बाबा ॾाढा सुठा माण्हू आहिनि, बाबा. आरा, नखरों को कहा जाता है, उसकी जमा एटीट्यूड्स इन जमा, या लाड, अंगल आरा, दोनों को. यहाँ पर हम मद की जदवल का जिक्र करें तो उसमें सिर्फ आरा आएगा. माणा भी नखरों कहा जाता है, खासतौर पर शायरी में महबूब के नाज और नखरों के लिए माणा लफ्ज इस्तेमाल होता है. मामा इज, जब मुखातिब होंगे अपने मामा से तो भी प्यारा मामा कहेंगे, प्यारा मामा. साईं, एहतराम से बोला जाता है. साईं इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड जिस पर हम अलग से बात करेंगे. या अगर प्लूरल में जिक्र करना चाहें थर्ड पर्सन तो भी मामा होगा. नाना भी उसी तरह से ही, जब मुखातिब होंगे नाना साईं, जब मुखातिब होंगे तो भी नाना, और एज थर्ड पर्सन प्लूरल में जिक्र करेंगे तो भी नाना. आजा मीन्स बड़ी जमा, फ्री, प्लूरल. और राजा, राजा मीन्स द किंग. गाबा, बैल के बछड़े को कहा जाता है. टीआर नंबर 1, कैन यू प्रोनाउंस दिस? टीआर नंबर 1, कैन यू प्रोनाउंस दिस? गाबा, काफ अलिफ जबर गा, बे अलिफ जबर बा, गाबा. ऑक्सेस, द बेबी ऑक्सेस, जमा में गाबा. आना, अंडों को कहा जाता है एग्स. और ये हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे भी था. तो जनाब ये मश्क यहाँ पर पूरी होती है. आई होप के यू ऑल डिड दिस मश्क. और रात के 8 बजे तक वक्त है कि आप इस मश्क को, यानी जो आपने क्लास वर्क किया वो हमें इरसाल कर सकते हैं. और एडमिन को जिस तरह से आप इरसाल करते हैं, टॉप पर अपना नाम और अपना टीआर नंबर लिखेंगे. और 8 बजे के बाद आपकी कोई भी जो सबमिशन होगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. आज दिस वाज द लास्ट क्लास ऑफ द वीक. मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि हम मंडे की क्लास कंडक्ट ना कर सकें, लेकिन ये आपको कंफर्म किया जाएगा संडे तक आपके ग्रुप में. अगर उस सूरत में अगर मंडे की क्लास नहीं हुई तो फिर लास्ट वीक की तरह ये होगा कि ट्यूसडे ऑनवर्ड्स फिर ये क्लास आपकी सैटरडे को होगी. मंडे की ऑल्टरनेट क्लास आपकी सैटरडे को होगी, ताकि मॉड्यूल मिस ना हो. इन केस जो कि इस वक्त तक प्रोबेबिलिटी है कि अगर मंडे की क्लास नहीं हुई तो फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नेक्स्ट वीक क्लास होगी. लेकिन एज यूजुअल कल और परसों छुट्टी होगी. और आपको पता है कि ट्यूसडे को आपकी जो असेसमेंट टेस्ट होगी, असेसमेंट टेस्ट नंबर 3 वो होगी. थैंक यू सो मच. आज कुछ ज़्यादा वक्त हमने लिया और आपने दिया हमें. थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर योर पार्टिसिपेशन. वीकेंड्स पर आप अपने रिफ्लेक्शंस भी भेजते हैं, ये बताते हैं कि क्या कुछ नया सीखा और क्या आप सीखना चाहते हैं जिस पर मार्क्स नहीं होते. लेकिन इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड वी विल बी मोर देन थैंकफुल टू यू, मोर देन ग्रेटफुल टू यू. तो दिस इज मी यासिर काजी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस क्लास नंबर 21 ऑफ सिंधी लैंग्वेज लर्निंग बाय सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध. मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ें सीखेंगे अगले हफ्ते. तो बशर्ते हयात और दुरुस्त की हालात आपसे मुलाकात होगी. ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं. हयात ही ना रहे और दुरुस्त की हालात ना रहे तो फिर ज़ाहिर है कि मुलाकात नहीं हो सकेगी. तो इन उम्मीद ते तो वरी मिलंदासूं. यकीनन तव्हां बि दुआ में यादि रखिजो, असां तव्हांखे दुआ में यादि रखंदासीं. हिकिड़े सुठे सफ़र जे नेक्स्ट थाक, पड़ाव को बोलते हैं सिंधी में थाक, नेक्स्ट थाक में वरी तव्हां सां मिलण जी उम्मीद रखी तव्हां खां मोकिलियां था. दिलियूं गॾु तो जुदाई कॾहिं बि न आहे. सदाईं गॾु, जेॾां पेर तेॾां ख़ैर. अल्लाह निगहबान.